Okay, student, let us start today's topic, that is binomial theorem. Alright, we will do the basics of this chapter in this particular video. And let me just quickly go through what we are going to cover in this particular chapter. The first topic that we'll do today is the expansion and the general term, which you must have done in class 11th NCERT level as well. You must have also done the middle term and some properties of binomial coefficients. So we'll cover all these three plus these four different concepts. I will try and maximize the lecture. I am not sure whether we will be able to finish this last topic in this class, because this is completely out of the syllabus, and this is something which generally being asked in the advanced level, not at the mains level. But let's see if we can cover it in this particular chapter or not. Okay, so but first of all we'll start with the basic thing, that is expansion and the general term. Okay, so let's just start the chapter of binomial theorem. This screen that is here shows that what you have already studied. So this is the binomial expression, that is x plus a. Binomial, as the name suggests, it has two variables, x and a, and the index, though this n is particularly called the index. This is called the index, right? Index of the binomial. And this is how you expand, that is nc0 x raised to power n a raised to power 0, nc1 x raised to power n minus 1. So how we are writing it is a very simple term, nc0 x raised to power n. So the entire index is first of all given to the first variable, that is x. Then in the subsequent terms, what we will do, we will reduce the power by 1 and give that power to the next variable. That, so sorry, here it is a raised to power 0, now it will become a raised to power 1. And similarly we will do nc2 x raised to power n minus 2 a square and so on. So the last term, in the last term, if you see what it will become, all the power, just let me rewrite it. So all the power will be given to what? So entire power will be given to the first second variable. So ncn x raised to power 0 a raised to power n, right? This is how you write binomial. Another important aspect, if you see in each term, the net power, if I talk about the net power is always equal to the index. So if you can match this, you will never write a wrong binomial term. For example, let me highlight it for you. It is n, it is 0. So if we add them, net power is n minus 1, power 1 is again 1, right? N minus 2, 2, again sum is what? N, 0 and n, again sum is n. And if we see how many terms we have written, we started from x raised to a, or we can say we started from a raised to power 0 and we have gone till the power of n. So you are going from 0, 1, 2, 3 up till n, right? So these are how many terms? If we are asked to find the number of terms, so I can say these are n plus 1 terms, right? So in a binomial expansion, there are, if the index is n, so let's say if index is equal to n, so this implies the terms will be a number greater than the power, right? If we talk about the binomial coefficients, so these nc0, you must be knowing that these all nc0, nc1 are called binomial coefficients, right? And we rather just saying nc0, we can just say then c0, c1. So this is also same as nc0. One another thing which is important is, if I write something like nr like this is also equivalent to saying NCR. This has been asked in IIT JEE. A question was given and it was written in this format, right? This is also mentioned in your NCERT. So keep this in mind that if something of this sort, NR in brackets is written, there is nothing but NCR only. Okay. Whether I write C0, this is equal to NC0. So you should not ask what is in the above section here. Okay. We also know what is NCR. So NCR is nothing but n factorial by n minus r factorial into r factorial. Okay. And the another important formula, though we will cover this later also, that NCR is equal to NC n minus r. So what do you mean by this is that 11, let's say 11C2, this is nothing but equal to 11C9, right? Or you can say if you add these two, the answer comes out to be 11, then they are equal. So for example, like another example, 5C2 is equal to 5C3. Why? Because if you add the lower scripts, you will get the index. So these two terms are equal. Okay. This is the basic that we all know till now. Let's move ahead. Okay. Now coming to the general term part of this, right? What is the general term?
So this is the general term. So we do not say TRth is the general term. This is wrong. We say TR plus 1 is the general term, right? And we write this as NCR x raised to power n minus r a raised to power r as mentioned over here, right? Or in another way, you can learn it as NCR first term raised to the power n minus r, second term raised to the power r. Okay, and again, if you see, if we add the net powers, if we add them, the answer is nothing but equal to index only. The answer again comes to be the index, right? So if we want to write the fifth term T5, so what we will write? We'll write T4 plus 1 and we'll use the value of r as 4. So for example, if I have to take x plus a raised to power n, this is the expression that is given, and we are asked to find T10, that is the 10th term. So what we will do? T9 plus 1. So that means we'll use r as 9, not as 10. So remember, we'll not use r equal to 10. That is wrong, right? So we'll use r as 9. So what it will become? NC9, right? X raised to power n minus 9, a raised to power 9. This is the 10th term of this particular series. Okay, got it? Now let's start applying these properties in the questions directly. So this is the first part that we have to cover, that the basics have to be applied in the question, and this is the major chunk where the questions are asked from. Okay, we'll be asked, majority of the times we'll be asked questions from expansion and the general term only. Let's see, how do we do this? So this is the question which says x plus under root x cube minus 1 whole raised to power 5 plus the same term with a negative sign is a polynomial of what order? This is the question. We need to find the polynomial. So in polynomials, if we talk about the polynomial, we know that variable must have what kind of power? So the variable must have here positive integer power, right? Positive integer, or at the max it could also be 0, right? It could also be 0. That's not a problem. Its power could be what? 0 or positive z. Z means set of integers, right? But if you see here in this variable, this is what? Under root. So what I can say, let's say my a is x and my b is this entire thing of under, which is in the under root, x cube minus 1. So this is similar to something of this sort, right? Don't worry about, just open the brackets. So if we try and find the pattern, so if the power is 5, how many terms are there in the first expression? So terms are 6, one more than the index. So what they will be? So it will start from 5c0 a raised to power 5 b raised to power 0, right? 5c1 a raised to power exactly 4 b. So this is how these terms will go on, right? Now let's expand the other number that is also given to you. So it will be 5c0. Now there is a minus sign in between. So how do we expand minus? Now let us take this particular variable as minus b rather than b. Now what you can assume, that this was minus b. So you can say a raised to power 5 and minus b raised to power 0, right? Then you can say 5c1 a raised to power 4 minus b raised to power 1. This is how this series will go on. So don't worry about the negative sign. All right. So negative sign are expanded like this in the binomial expansion. Now if you see a pattern that this minus will come outside here and this term will get cancelled completely from here, right? And since there are 6 terms, so this is the even term which is getting subtracted even here. So how many even terms will be there? If there are 6 terms, there will be 3. So 3 terms will get cancelled out. 3 terms cancels out, right? 3 terms will be cancelled. So what you will be left with is, let's see. So you will be left with 5c0 a raised to power 5 फर्स्ट टर्म. अब आपके पास अगली टर्म कौन सी बचेगी? ये वाली नहीं बचेगी. कौन सी बचेगी? उसकी अगली वाली. तो दैट इज 5c2 a3 b2 और उसके अगले वाली कौन सी होगी? 5c4 एग्जैक्टली 5c4 a b raised to power 4 and they will come twice, right? Because एक बार यहां से और एक बार इस वाली एक्सप्रेशन से. ओके, नाउ इफ यू वॉच प्रॉपरली, हमारा b क्या था? b वॉज दिस पर्टिकुलर टर्म, राइट? हमें इसकी ये क्या बन गया? एक्स क्यूब माइनस 1.
सो वी नीड द पावर टू बी इवन सो दैट दिस रिड्यूसेस टू पॉलिनोमियल. अगर इसकी पावर यहाँ पर मैं कोई भी नंबर n मल्टीप्लाई करता हूँ और वो अगर इवन है तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा. आप b की पावर्स देखो, अब b इज इवन, b पावर इज इवन, तो काम बन गया हमारा, क्वेश्चन सॉल्व. तो 5c0 a की पावर 5, तो दिस इज x रेज टू पावर 5. अब वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं. 5c2 a क्यूब क्या हो गया, x क्यूब, b स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, यस x क्यूब माइनस 1. और 5c4 ये क्या हो जाएगा, a की जगह क्या पुट कर दें, a की जगह लेट्स पुट आवर वैल्यू व्हाट, राइट x, और ये कितना हो गया, x क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, और 2 का मल्टीपल तो भी बाहर है ही, इंटू 2, राइट. गॉट इट टिल नाउ. हमसे पूछा गया था पॉलिनोमियल की ऑर्डर या डिग्री. सो डिग्री कहां से आएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ x. सो इफ यू नोटिस व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. अब x की पावर 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6, 5 से बड़ी हो गई. क्या यहां से 6 से बड़ी टर्म आएगी, बिल्कुल. नोटिस करो यहां पर क्या होगा, स्क्वायर, क्यूब करोगे तो ये 6, और यहां से एक और x है, सो नेट पावर हेयर विल कम आउट टू बी 7. सो द ऑर्डर इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज 7. दिस इज द आंसर वी आर लुकिंग फॉर. गॉट इट, ठीक है. अब देखो इसमें एक और चीज हम कर सकते थे क्या, 2-3 फॉर्मूले और रिवाइज करते चलते हैं बेसिक से. पहली बात, NC0 क्या होता है, n. इसको हम PNC के हिसाब से समझें तो, सॉरी नॉट NC0 इज नॉट n, इट इज 1. NC0 इज 1, राइट. और दूसरी प्रॉपर्टी NCN भी कितना होगा, 1. क्यों, 0 और n को ऐड करो तो वापस से इंडेक्स बन रहा है. सो NC0 इज 1, NCN इज 1, राइट. इसको अगर हम PNC की भाषा में समझे, n में से 0 उठाने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है, कुछ मत उठाओ. या फिर बोले n में n ऑब्जेक्ट्स हैं और n के n हमें चूज करने हैं, तो कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है भाई, एक साथ सारे उठा लो, राइट. इफ वी वांट टू सी व्हाट इज NC1, सो NC1 इज नथिंग बट n, राइट. n में से एक आइटम उठाना है, कितने तरीके हैं, अलग अलग तरीके कितने बनेंगे, n ऑब्जेक्ट 1 उठाया एक तरीका, ऑब्जेक्ट 2 उठाया दूसरा तरीका, एंड सो ऑन. एंड सिमिलरली आई कैन से NCN-1 भी कितना होगा, 1. So these two basic things should be remembered by hearted, right? अगली बार से सोचना नहीं है इसके बारे में. Okay, now let's take the other problem, which is the greatest integer which divides this particular number. So we want to find the highest number which will divide this particular quantity. So quantity क्या है वो देखें पहले, वो है 101 raised to power 100 minus 1. तो इस -1 का तो अभी बाद में काम देखेंगे, पहले हम नोटिस करते हैं इस क्वांटिटी को जो कि दे रखी है 101 रेज टू पावर 100. तो अभी एट दी ऑनसेट इट डज नॉट लुक्स लाइक अ बाइनोमियल प्रॉब्लम, तो उसको बाइनोमियल बना देते हैं. वो बाइनोमियल कैसे बनेगी, आप इसी को क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 1 रेज टू पावर 100, राइट. नाउ इट बिकम्स अ बाइनोमियल. कैन आई से दिस इज अ बाइनोमियल, कैसे, कितनी टर्म्स होंगी भाई इसमें, 100 प्लस 1 दैट इज 101. सो द फर्स्ट टर्म वुड बी 100 C0, सारी की सारी पावर किसको दे दो, पहले वेरिएबल को, दैट इज 100 रेज़ टू पावर 100. नेक्स्ट टर्म वुड बी 100 C1, 100 में अब एक पावर कम करो और सेकंड वेरिएबल को दो. सेकंड वेरिएबल है क्या, वो तो 1 ही है. थर्ड सिमिलरली समझ में आ रहा. सो थर्ड वुड बी, आप ये 2 की पावर क्या होगी, 1 के पास जाएगी, बट उसको फर्क नहीं पड़ेगा. तो लास्ट टर्म क्या होगी यहाँ पर, सिमिलर लॉजिक से 100 C100, यहाँ डॉट 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 बना देते, और लास्ट टर्म क्या होगी, 100 की पावर 0 हो गई और 1 आ गया. दिस विल बी दी पैटर्न, राइट. अब अगर इसको नोटिस करो तो बनता क्या जा रहा है वो देखो, 100 C0 हमने बात करी, NC0 कितना होता है 1, सो दिस बिकम्स नथिंग बट 100 C100. व्हाट इज 100 C1, 100, और ये इसमें अभी भी क्या आ गया, 100 की पावर 99. ठीक है जी. ये अभी आप इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं 100 C2 ही रहने देता हूँ, और दिस इज 100 रेज़ टू पावर 98, और ये ऐसे चल रहा है. ठीक है, और ये वाली पूरी टर्म क्या बन जाएगी अब 1, और इससे पहले वाली भी लिख लेते हैं एक बार. इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, 100 C99, उसमें एक क्या बचेगा, 100 पहला और प्लस 1. यहां तक कोई दिक्कत, तो ये वाली टर्म तो ये बन गई. ठीक है, 1 आ गया इसका. हमें अब इसमें करना क्या है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस. -1 है ना, देखो यहां पर ये रहा -1. सो हुआ क्या, -1 तो कैंसिल हो गया, सो दिस -1 गेट्स कैंसल्ड आउट, राइट. एक्सेप्टेड. नोटिस करो एक और चीज, अब हमारे पास यहां पर क्या आ रहा है, 100 कॉमन आ रहा है सब में से. सो आई कैन से 100
कॉमन के बाद क्या बचेगा, देखो 100 की पावर 99 प्लस ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 100 की पावर 99 अगेन, राइट, 100 C2 100 की पावर 97, ठीक है जी। और ये लास्ट टर्म क्या बन जाएगी, ये वाली अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर तो 100 C99, राइट। सो हमें दिख क्या रहा है अब, दिस नंबर इज एग्जैक्टली मल्टीपल ऑफ 100। तो हम जल्दबाजी में कई बार आंसर क्या मार्क करके आते हैं, सर ए इज द आंसर, बट ए इज नॉट द आंसर, राइट। वेट, क्यों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जब तक आपका लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है, जब तक एक नंबर में कन्वर्ट नहीं होता, जब तक आप इसको सॉल्व करते रहो। नंबर और जनरली क्या होना चाहिए इसमें 1, दिस इज अ ट्रिक आई एम टेलिंग यू, ये कोई तरीका नहीं है, ये ट्रिक है बस एक। नंबर क्या होना चाहिए 1। नोटिस करें व्हाट इज 100 C99, 100 C99 क्या होगा, मैं इसको ये बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट 100 C1, क्यों 99 और 1 फिर से 100 बन रहा है, और 100 C1 हमें पता है क्या होता है 100। सो एक्चुअल में ये अभी क्या है, ये नंबर क्या है 100 है, और इससे पहले वाली टर्म में भी 100 आ रहा होगा एक, उससे आगे वाली टर्म में तो 100 है ही है। सो इनफैक्ट व्हाट यू कैन से, मैं एक और 100 कॉमन ले सकता हूँ, और ये क्या बन जाएंगे अब 98, 100 रेज़ टू पावर 98, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका टर्म, राइट 96। और लास्ट तक जब पहुंचूंगा अब की बार मेरे पास क्या आएगा 1, जो मैंने बोला था मेरी रिक्वायरमेंट है। अब इस नंबर में से यू कैन नॉट टेक 100 कॉमन एल्स, राइट, अब और 100 कॉमन नहीं ले सकते। सो द हाईएस्ट नंबर विच विल डिवाइड दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो हमने क्वेश्चन में दिया था इज 100 स्क्वायर, दिस पर्टिकुलर नंबर, ये वाला नंबर जो है डिवाइड करेगा ही करेगा इसको। सो 100 स्क्वायर इज नथिंग व्हाट 1 लाख, दिस इज आवर आंसर। So sorry, not 1 lakh, 10,000. So 100 square is nothing but 10,000. So this is our answer. This is how it has to be solved. Okay. Okay. So now let's take another problem. So it says find the coefficient of x raised to power 6 in this particular expression. Right. So another formula first of all. तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं हम वैसे वैसे फॉर्मुले रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। वी आर नॉट डूइंग कि फॉर्मुले एक जगह लिख लिए एंड देन वी आर सॉल्विंग देम, हम जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे वैसे फॉर्मुले करेंगे। सो इट आई इन माय आइडियोलॉजी आई बिलीव दिस इज अ बेटर मेथड टू learn formulas if you directly apply them in the formulas rather than writing formulas and then learning them. So इसमें formula क्या यूज करूंगा, if the binomial is this 1 plus x raised to power n and you are asked coefficient of x raised to power let's say r, not n, so coefficient of x raised to power r, sorry, coefficient of x raised to power r, so this is nothing but NCR, राइट। और अगर मुझसे पूछा जाता rth टर्म या टी आर प्लस 1th टर्म बताओ इसकी, तो क्या होती NCR x रेज टू पावर r, ये याद होनी चाहिए आगे से आपको, आगे से इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वेरी बेसिक फॉर्मूला, राइट। इसको हम कैसे याद करेंगे, फॉर्मूले के तरीके से, राइट। नाउ लेट्स अप्लाई दिस इनटू द फॉर्मूला। इट सेज फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6 इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेंशन। अब ये देखने में बाइनोमियल तो है नहीं, यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, देयर आर 4 टर्म्स जिसकी पावर रेज करी जा रही है, राइट। सो इट इज नॉट बाइनोमियल, बल्कि ये तो बाई की बाई हो गई, क्वाड्रेटिक क्वाड पॉलिनोमियल है जिसकी पावर रेज करी जा रही है। बट लेट्स सी, सिंस वी हैव टू डू ओनली बाइनोमियल, हाउ वी कैन ट्वीक दिस। अगर ये कुछ क्यूब दे रखा है तो क्यूब किस में आता है भाई, जरा नोटिस करो, क्यूब के फॉर्मूले में बनना चाहिए, दिस इज नथिंग बट इक्वलेंट टू 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। चेक करके देखो आप, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। सो दिस इज नथिंग, जो अंटायर क्वेश्चन था, सो जो क्वेश्चन था मेरा वो क्या बन गया, 1 प्लस एक्स, 3 है 15 थी की पावर 45। यू आर आस्क्ड टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6। अब देखो फॉर्मूला बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, n इज 45, यू नीड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6, so this is nothing but NCR, answer is 45C6, so this is the answer we are looking for. Okay, very simple problem. I've just taken it for this particular concept. This is very important concept and generally being asked in these kind of questions, and you have to remember this particular formula as well. Okay, let's move ahead. So now let's take a tough problem to understand this concept. Find the greatest value of the term independent of x.
तो अब इसमें नई वैल्यू क्या आई, इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकाली जाती है. तो व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स? एज अ नेम सजेस्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मीन्स एक्स की पावर क्या होगी उसमें, जीरो. देयर विल बी नो टर्म ऑफ एक्स. दिस इज हाउ इट कुड बी डन. सो अगर मैं अपनी एक्सप्रेशन देखूं, एक्स साइन एल्फा प्लस 1/x कॉस एल्फा होल रेज टू पावर 10. तो जरा इसको जनरलाइज करके लिखें, पहले इसकी जनरल टर्म लिखें. तो क्या बनेगी, n नहीं सॉरी अगेन लेट्स से we'll write 10. Okay, so this will be the term if I have to write this expression in the form of summation. तो ये मैंने किस में लिखा है, summation form में. Very important also, let us understand how we have written this. So obviously r will start from 0 not from 1. Do not do this mistake. तभी क्या आएगा यहाँ पर 10c0 और यहीं पर इसकी पूरी की पूरी पावर 10 चली जाएगी. So this n let me replace it by what, it has to be 10, right? So if this is 10 minus r, आपसे पूछा क्या जा रहा था, इंडिपेंडेंट. सो नाउ लेट अस फाइंड द नेट पावर ऑफ x इन दिस. सो लेट दिस बी समीशन 10cr. x की कौन कौन सी पावर है, एक तो 10 माइनस आर, राइट, और एक 1/x/r. तो ऊपर जाके फिर से क्या हो जाएगी, माइनस आर. और साइन एल्फा की नेट पावर क्या है यहाँ पर, 10 माइनस आर, एंड कॉस एल्फा इज रेज टू पावर आर, राइट. दिस इज द स्टफ. हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. अभी हमने बात करी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, जीरो. व्हाट इज द नेट पावर हियर, 10 minus 2r, this should be equal to 0, so this implies r is nothing but 5. So when you put r is equal to 5, that means the term will become independent of x, right? r 5 होने का क्या मतलब है, कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट है, if I have to ask you. r 5 कब आता था, नोटिस करो जब आप लिखोगे t res, exactly. So this should be the 6. तो अगर आपसे कोई पूछता find the term which is independent of x, then the answer would become t6. Okay, now let's put the value of t is equal to, oh sorry, r is equal to 5, and we are asked to find what is the greatest value of this particular term, what is the maximum value this can take. So अभी तक पहले बात करें term बनी क्या, so t6 is equal to, right, 10c5 x की power 0, because this is what we have calculated, and this will become what, sin alpha raised to power 5, and this will be cos alpha raised to power 5, right. Again a component of trigonometry coming into place, this becomes 10c5. I can multiply and divide by 2 inside. देखो क्योंकि sin अल्फा और cos अल्फा की पावर सेम है तो मैंने उनको क्लब करके एक साथ लिख दिया, राइट. और ये क्या बन गया, 10c5. कैन वी से सो, यू आर गेटिंग द पॉइंट. तो ये क्या बना, 1/2, और ये कितना हो गया, sin 2 अल्फा रेज टू पावर 5. And now we are asked, we need to find the maximum value, right. हमसे पूछा क्या जा रहा है, we are asked to find what is the maximum value. इसमें variable कौन है, this is constant, this is constant, the only thing is this is the variable. And what is the maximum value of sine, irrespective of whether it is alpha or 2 alpha, it will take 1. So the net answer becomes 10c5 1/2 raised to power 5. So this is the maximum value of this particular question. Got it? Okay, I hope the question is clear. Just replay this question to make sure that you understand all the concepts, which are in fact very basic. Let's move ahead and do the other question. Now let us take this problem. Also a variation of this, or in fact a type of this question has been asked in JEE Mains also. Let's see how to solve this. So if we see here, there are two terms which are getting multiplied. One is a normal term with power 1 and the other is a binomial expansion with power or index 9. So let me write this for you. Is first of all, let us try and get the hold of the question. 1 plus x plus 2x cube and something here with the power 9, right. Let's say something for the time being. We need to find the term independent of x here, right. So वो कैसे मिलेगी, हो सकता था, अब कैसे कैसे पेयर बनेंगे, देखो 1 into इसमें से जब कौन सी टर्म आएगी, coefficient of x raised to power 0, right, plus when x is multiplied by, let me change the pen so that you can understand what I am doing. So this will be coefficient of x raised to power -1, because this x and -1 will get cancelled out, right. Third, this particular thing, that 2x square, so this will be 2x cube
multiplied by, yes, now you are getting the hold of this. This will be coefficient of x raised to power minus 3. So this is the possibility that we can obtain the net independent term. Okay, ये कैसे हुआ वो फिर से देखो, क्योंकि अगर आप इसमें से x माइनस 1 दिखाओगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगी टर्म. सिमिलरली x क्यूब और यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. सो अगर सबसे पहले इसकी rth टर्म लिख लें, जो ये वाली हमारी बाइनोमियल दे रखी है हमें, सो व्हाट विल बी टी आर प्लस 1 rth टर्म हमारी, तो 9CR 3/2 x स्क्वायर रेज टू पावर 9 minus r into 1 minus, oh sorry, minus 1/3x raised to power r. This will be the general term. And if we solve this completely, so this r plus 1th term or the general term will reduce to something like this, where x net power would become 18 minus 3r. वो कैसा आ रहा है देखो, 2 into 9 18 2r, और एक डिनोमिनेटर में x जिसकी पावर है r, तो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया. अब अप्लाई करना शुरू कर देते हैं इस क्वेश्चन में. सो दिस इज 1 into कोफिशिएंट ऑफ x की रेज पावर 0. When will the power of x become 0? See here, that this is the thing we have solved. When r is equal to, yes, r is equal to 6. So we substitute r equal to 6. This becomes 9c6 3/2 raised to power 3 and minus 1/3 raised to power 6. Got it? Got hold of this? अगली टर्म देखें, अगला है ये वाला नंबर. x आपको क्या चाहिए? -1. So what I am doing is I am actually doing this. 18 minus 3r is equal to, now you have to do equated to -1. Remember that another basic concept, the r that is written here, this must take what? r must be integer value, right? ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये फ्रैक्शन आ जाए. तो if you try and solve this particular quantity, what value of r you will get from here? So you will get r is equal to here 19/3, which is not an integer, right? So you will not get a term which will have coefficient of, or which will have x raised to power -1. So no independent term from multiplying with x. Next, move ahead. Now you need the power to be -3. So equate the net power of x to -3. Can we get a integer value of r? Yes. Now this time we can. This will be when r is equal to 7. So substitute r is equal to 7. So this will become 9c7 3/2 square minus 1/3 raised to power 7. And if we combine this all, so this answer becomes 9c6 3/2 raised to power 3. This becomes 1/3 raised to power 6, because this is even power, plus no term from here, directly add this here. So 9c7 3/2 square, and minus will remain as it is, because now minus has a odd power. So this is the answer we were looking for. This is the independent term which will be there in this particular expansion. Okay, this is how you solve this. Again, a basic question you must have done in NCERT level. We just did it to revise and understand the basic concept that whenever we talk about r, the value of r must always be a integer. Keep that in mind. Okay, let's take another problem. Okay, so now the problem is you have to find the coefficient of x raised to power 50, right? This is something similar to where we'll be using NCR formula, right? NCR, coefficient of x raised to power r is NCR. Keep that in mind. जैसे ये पढ़ो तो एकदम से क्लिक करना चाहिए. But now the problem is the thing which is given to us is not a simple stuff. It is something very complicated. It is something like this: x into 1 plus x raised to power 999. And if you see, the last term here is x raised to power 1000. Can you find a pattern? Again, I'm telling you that maths is mostly, or if not mostly, it's almost all about finding the pattern. Then you can easily solve even a difficult problem. So what is the pattern over here? Let's see. 1 plus x raised to power 1000. Here it is 999. So next would be 998, 997, and eventually 1 and 0. इसमें 1 plus x की power क्या है? इस वाली last term है 0. So you can see that power of 1 plus x is decreasing. And if I have to highlight powers of x now, can you see that powers of x are increasing? Here it is 1. In the next term it will be 2. Here it should be 3. Here it is 999. So here it would be 1000. So there is a definite pattern.
Also, can you see that this particular series is a GP? Yes, this is the most important aspect of this question. So this is particularly EGP, where a becomes 1 plus x raised to power 1000 and the common ratio is इसमें एक कम हो रहा है तो 1 by 1 plus x into x, or you can say x upon 1 plus x is the common ratio. Apply this, you will automatically get the answer, right? Now this is a GP. How many terms are there? Yes, again a good error that we people generally do. So terms, if we are asked to find, is not equal to 1000. How many terms are there? They are equal to 1001. Absolutely. Okay, so if there are 1001 terms, so what is Sn? We know that Sn is a into 1 minus r raised to power n divided by 1 minus r. So let's apply this over here. So what this question would reduce to is this series. Let's say the sum of the series is S. So it will be 1 plus x raised to power 1000, right? Let's do the calculation here. So r will x upon 1 plus x raised to power, how many terms are there? 10001 divided by 1 upon x upon 1 plus x. Right, this will be term. So if I continue it from here, so what it will become, let's see, this will be 1 plus x. Can you see that this 1 plus x, if I send it over here, x will cancel out, this will be 1, and this 1 plus x will go over here, this will be 1001, right? If we start solving here, what this quantity would be, x raised to power 1001 upon 1 plus x raised to power 1001, right? If you take the LCM, these two terms will get subtract, and what we will get, 1 plus x raised to power 1001 minus x raised to power 1001. This is what you will obtain. So this is your particular sum. So in fact, the entire series that was given to you, let's say if I take this as S, has been reduced to this particular number, right? So now coming back to the question, we were asked to find what coefficient of x50. So your now target now reduces to find coefficient of x raised to power 50 in this particular quantity. Let me rewrite for this for you, right? So coefficient of x raised to power 50 would be given by this particular term only. This cannot give you x raised to power 50 because this is a constant term. It is already it's already having a power 1001. So the only question now reduces to coefficient of x raised to power 50 in this particular expansion, which is nothing but equal to saying 1001 C50. And that is the answer we were looking for. So this is the answer which we were asked to find, and it's a very important, in fact I would say this is one of those questions which could be asked in the paper. Why? Because of two logics. First, it is hard to understand what is given here. So people who are able to apply GP in this question can only move ahead, and it also asks you a formula based on GP. So in a way they have already asked you sequence and series in this particular question, and then you also are asked to calculate somewhere down the line and then apply the formula of binomial. So a very good question where they have asked two different properties and from two different chapters. Okay, now let's move ahead to a different concept altogether. Okay, now let's move to the other concept, which is the middle term concept. So in this particular expansion x plus a, if we are asked to find the middle term, so what do you mean by the middle term? So obviously let's say there are 5 terms, t1, t2, t3, t4 and t5. So obviously, as the name suggests, middle term. So t3 will be the middle term. So this is the concept, that how to find the middle term of a binomial expansion. But if I also say, now you understand what I mean by middle term. So if there are 5 terms, you can quickly tell me that middle term is the third term, right? So here there are 5 terms in this particular example that I have taken to highlight this thing. Now let's read the property for you, and I explain this with this particular example. If n is even, then the number of terms in the expansion would be odd because it will be one more than the index.
So that means if number of terms are odd, you will have only one middle term. Very important concept. As you can see it from here, if it was only T5, you have got T3 as the middle term, right? How do we find the T3? क्या आपने 5/2 कर दिया सीधा? No, 5/2 is wrong. So what you are actually doing here is, if I talk about this particular example, so ये example कुछ कैसा है, 1 + x⁴ ले लो, right? तो उसमें कितनी टर्म्स आती? 5 टर्म्स आती, ठीक है? तो ये here n is equal to 4, that is why you are getting 5 terms. You want the third term. थर्ड टर्म कैसा आएगी जरा नोटिस करो. n की वैल्यू क्या पुट करी जाए, वो आएगा n + 2/2. दिस विल गिव यू थर्ड टर्म 3. या फिर आप इसको ऐसे करो जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है n/2 + 1. So if n is even, if n belongs to even, then the middle term is given by n/2 + 1. इसको ऐसे याद रखना एक आसान तरीका है, क्या है कि भाई n/2 है ना, तो n/2 कब करोगे, जब n इवन होगा. इवन है तो n/2 + 1. Now let us extend this concept to if n is odd. If n is odd, then the number of terms would become even. तो even में मिडल टर्म कैसे बोलेंगे? अब प्रॉब्लम आई है कि इवन में मिडल टर्म कैसे रिपीट करिए. देखो मैं यहाँ पर दोबारा लिख के दिखाता हूँ, तो मैं लेट मी जस्ट इरेज दिस ऑफ. अब की बार आपके पास 6 टर्म्स हैं एक्सपेंशन में. लेट्स से दिस इज नाउ T6 ऑल्सो. अब ये T6 भी है, ठीक है, और ये 5 की जगह अब कितनी टर्म्स हो गई हैं आपके पास यहाँ पर? यू हैव 6 टर्म्स इन दी एक्सप्रेशन. अब कैसे करोगे? अब आपके पास एक मिडल टर्म ना रह के अब कितनी मिडल टर्म्स बोलते हैं हम लोग एक्चुअल में? दे आर 2 मिडल टर्म्स. T3 भी मिडल टर्म है और आपकी T4 भी क्या रहेगी? मिडल टर्म. सो एक्चुअल में हाउ मेनी मिडल टर्म्स यू हैव गॉट? You have got 2 middle terms, and this is what is the concept all about. So if n is odd, that means expansion में even terms हैं, तो आपकी middle terms कितनी आएंगी? 2, which are actually what? n plus 1/2. अब इसको कैसे याद करोगे? n देखो यहाँ पर क्या था, n was odd. odd divide by 2 तो हो नहीं सकता, तो n plus 1/2, और अगली क्या हो जाएगी? इसी में एक उसके आगे वाली टर्म plus 1. So these two terms are known as the middle terms. कैसे? नोटिस करो 6 टर्म्स कब आएंगी इसमें समझते हैं फिर से. ये कुछ कैसा होगा? 1 + x⁵ 5 टाइप का, तो n must be 5 right over this. So n + 1/2, so this gives you value 3. 3 + 1 should be 4. This is what is meant by here. So T3 and T4 will give you the middle term. Okay. Another two very important properties of the middle term are, when there are 2 middle terms in the expansion, then their binomial coefficients are equal. Very very important concept. Their binomial coefficients are equal. क्या मतलब है इसका? So for example, I say T3 and T4 here are the middle term. That means their binomial coefficients must be equal. Binomial coefficients क्या आएंगे? Equal आएंगे. Binomial coefficient कौन से? NCR टाइप वाले. ये दोनों के क्या आएंगे? सेम आएंगे. ठीक है, क्योंकि क्यों आ रहे हैं ये नोटिस करो, ये यहां से भी इक्वल दूरी पे है और ये यहां से भी इक्वल दूरी पे है, तो ये बराबर ही आने हैं. फॉर एग्जांपल 5 था ना, ये देखो अब करते हैं. 5 के लिए T3 का कोफिशिएंट क्या होगा थर्ड टर्म के लिए? बता सकते हो आप मुझे? हो जाएगा 5C2 राइट. T3 के लिए सिर्फ मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, टर्म नहीं लिख रहा. तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? 5C2. एक कम होता है, इसे याद आया? R+1 करते थे हम लोग. एंड व्हाट विल बी द कोफिशिएंट फॉर T4? It will be 5C3 right, and we know that these two are equal. क्यों? 2 + 3 gives you 5, so we know that 5C2 is nothing but 5C3. So that is what is meant by this property. Binomial coefficients of the middle terms will be equal if there are 2 in number. Okay. Another very important property, it says that binomial coefficient of the middle term is the greatest binomial coefficient. Very important. तो इसका क्या मतलब है? आपके पास बड़े सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आते हैं एक्सपेंशन में, NC0 से, रेंजिंग फ्रॉम NC0, NC1, और ये कब तक चलते हैं? NCN तक. तो जो मिडिल टर्म का यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा वो क्या है? वो याद क्या रखना है? दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट और द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट. आपको उससे ज़्यादा बड़ा नंबर का बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं मिलेगा. इफ यू सॉल्व दिस, दिस इज द मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट. Very important property. Okay, let's apply this into the problems. So it says in the expansion of y is equal to this again. So first of all,
दिस इज अ सीरीज एंड इफ यू पीपल कैन सी दैट ये जो सीरीज दे रखी है आपको यहाँ पर, ये क्या है, दिस बिकम्स अ जीपी, राइट। सो मैं आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। जो मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, देन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एंड दिस गोज टिल 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 19. So there are 20 terms in all. इसमें कितनी टर्म्स हैं, 20 terms are there, right? With a being 1, r की वैल्यू क्या होगी, 1 plus x. So s is, or I can say y is nothing but equal to 1 into 1 plus x raised to power 20 minus 1 upon 1 plus x minus 1, or I can say y is nothing but 1 plus x raised to power 20 minus 1 by x, right? This 1 and 1 gets cancelled out. Okay, so this is what you will get in terms of y. So y आपका, मैं यहाँ repeat करके लिखता हूँ अब क्योंकि यहाँ से important question शुरू होगा. So rather than saying जो question था वो आपका ये था, in this expansion, if the coefficient of x raised to power p, let me highlight what is given in the question. If the coefficient of x raised to power p is the greatest coefficient, then find the value of p. Greatest coefficient कहाँ आता है, अभी हमने पढ़ा important concept, greatest coefficient. So for greatest coefficient, the concept is it lies with middle term. Middle term का जो coefficient होता है that is actually the greatest coefficient. अब middle term की बात करें तो इसमें यहाँ x है, यहाँ पर 1 है, और ये जो चीज़ है यही तो सिर्फ बाइनोमियल एक्सपेंशन है. तो इसमें अगर पूछा जाता सो जो y की वैल्यू है उसमें ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसका मिडिल टर्म निकालना पड़ेगा क्योंकि और किसी का तो मिडिल टर्म आएगा नहीं, दे आर कांस्टेंट टर्म्स. सो व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस, इसमें n कैसा है, n इज 20 विच इज नथिंग बट इवन. इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, टर्म्स वुड बी 21, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स. ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का क्या मतलब हुआ, यस, सो इट विल हैव एग्जैक्टली वन मिडिल टर्म. वन मिडिल टर्म होगी, कैसे निकलेगी, 20/2 plus 1, right? So this implies 11th term is the middle term, right? 11th term is the middle term. So T11 is the term which will have the greatest coefficient. अब इसमें हम लोग गलती क्या करते हैं जल्दबाजी में कि T11 है और सीधा का सीधा क्या एज्यूम कर लेते हैं यार, x की पावर 11 वाला जो कोफिशिएंट होगा ना वो मैक्सिमम होगा. ये गलत है और उसके हिसाब से हम क्या लिख देते हैं 20C11, राइट. बिलीव मी दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. यस राइट, मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट इट व्हाई इट इज रॉन्ग. हमारे पास क्या आया है, 11th टर्म आपकी मिडल टर्म है, तो व्हाट इज T11, जनरल फॉर्मूले के हिसाब से T11 क्या होना चाहिए था, लेट मी जस्ट हाईलाइट लाइक दिस. T11 विल बी रिटन एज T10 plus 1. यस, तो T10 plus 1 इसमें क्या बन जाएगा, 20C10 x raised to power 10. Yes, absolutely. So 20C10 x raised to power 10 जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट वाली टर्म है. बट क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, तो P का आंसर इसमें अभी भी हम लोग जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, P इज इक्वल टू 10, राइट, विच इज अगेन रॉन्ग. ये तो आपने अभी सिर्फ क्या सॉल्व करा है, यू जस्ट हैव सॉल्व्ड, जस्ट अ सेकेंड, या सो यू जस्ट हैव सॉल्व्ड दिस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट. भाई अभी बट डिनोमिनेटर भी तो बाकी है, डिनोमिनेटर कहाँ गया. सो व्हाट यू विल हैव टू डू इज, आपका अभी तक ये क्वेश्चन सही था अगर आप कहते ये x की पावर 10 है, ठीक है, बट अभी डिवाइड किससे करना है, इसको x से और डिवाइड करना है. सो द मैक्सिमम पावर देन विल बी 9. सो आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज नॉट 10, आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज दैट p विल टेक वैल्यू 9. दिस इज द आंसर, राइट. 8 is 10 is not the answer. 10 is अगर जब डिनोमिनेटर में x नहीं होता, अभी डिनोमिनेटर में भी क्या है, x है, so the answer would be 9. Okay, now let us move to the next concept, which is properties of the coefficients, and again a very important topic. Okay, it says for this what I have taken, I have assumed the expansion 1 plus x. Okay, 1 plus x raised to power n, which can be written like this. Now the first thing that we are trying to find is sum of coefficients. Coefficients, as the name suggests, NC0, NC1, NC, like this. If we are to add them, what is the value?
the answer that you have to remember is very important, that it is 2 raised to power n, and the proof is very simple. So what we have actually done is just put the value of x equal to 1 in both LHS and RHS. So what this quantity will become? 2 raised to power n, and they will all reduce to sum of coefficients. X will get eliminated because you wanted to eliminate x, right? Very simple. Let's see for the second one. Sum of coefficients with an alternate sign. That means one is positive, the other is negative. Positive, negative. Answer is 0. Again, very important result. Like this is also very important result. The proof is again very simple. What we can do now for alternate positive negative, yes, many of you have got that right again. So just put x is equal to -1 this time. So let's see, if you put -1, what it will be? NC0 minus NC1 plus NC2 minus NC3 and so on. And this is what you were asked to find. And the left hand side will become 1 minus 1, 0. So the sum of coefficients taken with the alternative sign is 0. And from the same property, we can derive the third property, that sum of the coefficients of even and odd terms, they are equal. Let's see here. What I have written, that C0, C2, C4. So this is even binomial coefficients. These are odd binomial coefficients. The sum will be equal, and their sum will be nothing but equal to 2 raised to power n minus 1. राइट कैसे, कहां से आया? लेट्स सी. अगर मैं इसी टर्म को आगे लिखता, कैसे लिख सकता था? C0 प्लस C2 प्लस C4. मैंने करा क्या? प्लस वाले एक साथ कर लिए, और ये नेगेटिव वाले सारे मैंने कहां भेज दिए? राइट हैंड साइड भेज देता हूं. सो दिस विल बी C1, देन C3, C5 एंड सो ऑन. दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली सेड हियर, राइट. और अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं अपना ओरिजिनल क्वेश्चन लिखता हूं. जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था अभी? लेट्स सी, आई विल राइट इट अगेन हियर. That C0, C1, C2 up till Cn, ये कितना हो जाता है? 2 raised to power n, राइट. अब अगर मैं इसको स्प्लिट करके लिखता हूं तो ये दोनों तो बराबर आ गए मेरे पास, और ये दोनों ही क्या है? इस क्वांटिटी के अंदर है, राइट. सो ये आधे आधे नहीं हो गए स्प्लिट? सोचो जरा. सो अगर आप कहते हो C0 प्लस C2 प्लस C4, राइट, up till here, प्लस C1 plus C3 goes on. This is sum is 2 raised to power n, right, from here. But they both are equal, so I can say individually they are equal to 2 raised to power n minus 1. Okay, got it? Clear? In some properties or in some questions, what we directly intend to do is to find the sum of all binomial or combinatorial coefficients. Combinatorial means NCR, right? Don't worry about this term. Put the all value of variable as 1. Put all the variable equal to 1. सारे variables को क्या put कर दो, चाहे x हो चाहे y हो. All variables क्या मतलब है? अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन में सिर्फ एक वेरिएबल था, x प्लस 1 करा था मैंने. अगर कुछ x प्लस वाई रेज टू पावर n हो, तो फिर से आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे? यू जस्ट सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू y इक्वल टू 1. You will eliminate the variable. What will be left is sum of coefficients. Okay. For example, sum of all binomial coefficients in this particular expansion is 2 raised to power n again. क्यों? क्योंकि मैंने इसमें x को भी और y को भी दोनों को क्या पुट कर दिया? 1. अगर ये कुछ ऐसा होता है x प्लस वाई प्लस z रेज टू पावर n में पता लगाना है, तो यही आंसर क्या हो जाता? नो, 2 रेज टू पावर n नहीं, 3 रेज टू पावर n, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं, 1 1 1. तो आंसर वुड हैव बिकम 3 raised to power n. Let's see this in the next problem. Okay, now before moving to the question, let's just revise the properties once again. So we know that sum of coefficients is 2 raised to power n. If we take alternate positive negative sign, they are 0. Individually, if the even coefficients are added, it is 2 raised to power n minus 1. Odd are added, it is equal to 2 raised to power n minus 1. If NCR1 is equal to NCR2, so we have already done either R1 or R2 is equal, right, or their sum will be equal to index. Nothing but this is what I meant to say here. 5C3, right? Okay. Another important, very important property, NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. So if I have to tell you the application of this, let's say 5C2 plus 5C3, right? If you want to add them, what the answer would be? 6C3. As simple as that. ओके जो इसको याद कैसे करना है? आपका इंडेक्स बढ़ा दो और जो नीचे हाईएस्ट वाला टर्म है इनमें से उसको
लोअर स्क्रिप्ट में लिख दो, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज NCR इज इक्वल टू n माइनस वन CR माइनस वन। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको हम किस तरीके से याद रखते हैं, दिस इज NCR इज इक्वल टू n बाय R n माइनस वन CR माइनस वन। सो वाई दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट, ये करती क्या है, नोटिस करो इसमें इंडेक्स और बेस दोनों ही रिड्यूस हो गए, सो बोथ रिड्यूस बाय वन, हियर बोथ रिड्यूस बाय वन। और इंपॉर्टेंट चीज ये कहां यूज होता है सबसे ज्यादा, जब आप नोटिस करो आपका r यहां पर किस में, डिनोमिनेटर में, तो अगर आपको r कैंसिल करना हो, आई विल शो यू हाउ टू यूज दिस, ओके, डोंट वरी अबाउट दिस, बट जस्ट रिमेंबर दीज फॉर्मुलाज, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, okay. And the last formula that we have to do is NCR upon this. So again I'll rewrite this, which is the thing that you have to remember, that NCR upon NCR minus 1 is equal to n minus R plus 1 by R, right? This is a better form to learn this. Rather than doing this, let me just cancel this out. What you can do, you can remember this formula instead of this, though these both of them are same, right? So again, if I have to show you that how this has to be used, so let's say we take an example, let's say 10C9 by 10C8, right? So this will reduce to 10 minus, what is the value of R? Not 8, but we will take the higher value. So that is what? 9, right? Plus 1 by 9, right? This is how it has to be used. So this becomes what? Can you solve this side? Okay, 2 by 9. Okay, this is how you have to solve. Got it? So, but what I am asking you to do is, these are all formulas. Do them as formulas. They should be by hearted immediately, right? They're very, very important formulas. Now let's apply these into problems. Okay, the question says that find the sum of the coefficients of the terms of the expansion given in the polynomial. So the question is based on sum of the coefficients. So what we did in the last slide, for sum of coefficients, what you need to do, put all variables equal to 1 as it is, or in fact all variables or all values of x that you can see. So our particular expression here is 1 plus x minus 3x square raised to power 2143, right? This is the expression. We know that this is a trinomial, not a binomial, because there are 3 terms. And in fact we cannot reduce it to binomial. Don't worry about it. For sum of the coefficients, you just have to put x equal to 1. So this value becomes actually what? 1 plus 1, 2, minus, this is minus 1 raised to power 2143, and this is nothing but equal to minus 1. This is the answer. That's it, oral. So this is an oral problem actually. Okay. Let's do another formula which I actually have not covered in the general term expression. Let me write the formula for you. So let's say this is something very peculiarly asked in CBSE also, that how many terms are there in a plus b plus c raised to power n. So आपको कुछ याद है, आपकी NCERT में प्रॉब्लम था जहां पे इसको क्या करते थे, you used to take this as a as first variable and b plus c as the second variable, and now apply binomial in it. याद, मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ, तो NC0 a raised to power n, फिर NC1 a की पावर n माइनस वन और b प्लस सी, और फिर आप ऐसे इसको एक्सपेंड करते चलते थे, राइट? गॉट इट? अगर आपसे कोई पूछता है नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस पर्टिकुलर केस, आप सीधा इसमें क्या करोगे, फॉर्मूला याद करोगे. क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला इज नथिंग बट n प्लस वन इंटू n प्लस टू बाई टू. दैट्स इट. इतना याद करना है, ये फॉर्मूले की तरह याद कर लो उसे. अगर तीन यहाँ पर a, b और c अलग अलग टर्म्स हैं आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस वन n प्लस टू बाई टू नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी देयर, राइट? रिमेंबर दिस इज द फॉर्मूला. लेट्स मूव अहेड नाउ टू डू द अदर प्रॉब्लम. So now this problem particularly tells you to find, there are four, these are, first of all, these are not four options, these are four questions, okay? So we need to do them part wise. We need to solve a part, b part, c part and d part. Let's start with the a part. First of all, what is given to you is a trinomial, not a binomial. 1 plus x square raised to power n is given to be something of this sort, right? I'm just writing them so that I can use them in the question. A raised to power 2n, x raised to power 2n, right? Now the first part, a part,
is asking you to find A0, A1, A2 up till A2n. Can you tell me the answer? We have already done this. Yes, so what you will do? Nothing. What you should substitute x as? This is nothing but sum of coefficients. भाई आप भूल जाओगे बाइनोमियल है, कंसेप्ट तो वही रहेगा. आपको सिर्फ क्या चाहिए? A0, A1. तो आप इसको समझो LHS is equal to RHS. How you will obtain this particular quantity? Just replace x by 1. So if you are replacing x by 1 in the right hand side, you also need to do it on the left hand side, and this is nothing but 3 raised to power n. So the answer to this first part is 3 raised to power n. Second part is asking you A0 minus A1 plus A2. Can you find the pattern now? पैटर्न क्या है भाई? ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव. नोटिस करो, पहले क्या है? पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. ये कब आता था? अभी आज की क्लास में वी हैव डन. सो व्हाट यू आर आस्क्ड टू डू नाउ, जस्ट रिप्लेस x इज इक्वल टू -1. लेट्स सी, अगर आप x को यहाँ -1 रिप्लेस करो, देखो तो सीरीज कैसी बनती? A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3. ये तो चाहिए आपको. सो द आंसर इज x को -1 रिप्लेस करो, -1 और 1 कैंसिल आउट हुए, 1. दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1 ओनली. ओके, सो घबराना नहीं है कि बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है. द फॉर्मूला एप्लीकेशन रिमेन द सेम. थर्ड देखें, थर्ड में क्या करना होगा. थर्ड अब दिमाग लगाते हैं थोड़ा. तो थर्ड में आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा. थर्ड इज अगेन सिंपल. कैसे? वो पूछ रहा है A1, A3, A5. अब इसमें देखो क्या हो गया, गैप आ गया थोड़ा. गैप कैसे? आपके पास कॉन्सेक्यूटिव कोफिशिएंट्स नहीं है, बट दे आर एट अ डिफरेंस ऑफ 1. d इक्वल टू 2 पे आ रहा है ये. ठीक है, 1, 3 ऑड बेसिकली, आप ऐसे समझ लो उसको. कैन यू टेल मी द आंसर? अगर मैं इसको अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन मान लेता हूं, इसको मैं अपना सेकंड एक्सप्रेशन मान लेता हूं, तो आंसर आ जाएगा आपके पास. यस. क्यों? इन दोनों को अब की बार क्या करना है? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 and 2, दैट इज आई एम डूइंग 1 minus 2, तो आपको देखो मिलेगा क्या? ये कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या? दिस और माइनस माइनस प्लस 2 times A1 प्लस A3 प्लस A5 सो ऑन चलता रहेगा, राइट? और ये इक्वल टू क्या हो गया फिर? 3n minus 1. So the required answer here is required is nothing but 3 raised to power n minus 1 by 2. This is the required answer. And similarly you can easily solve the fourth part now. Fourth part में क्या हो रहा है देखो. Fourth part वो पूछ रहा है आपसे A0 plus A2 A4. अब की बार क्या पूछ रहा है भाई? इवन. इवन के लिए क्या करना पड़ेगा? नोटिस करो, और भी सिंपल है ये तो. ऐड कर दो 1 और 2 को. ऐड 1 and 2. So this will give you 2 times A0 A2 so on. ऐड करता हूं तो क्या है? 3 की पावर n प्लस 1. So इसका आंसर क्या हो गया? रिक्वायर्ड आंसर 3 की पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2. राइट? सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इजी. आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है कि भाई हमें तो बाइनोमियल पढ़ के आए थे, यहाँ तो बड़ी बड़ी एक्सप्रेशंस आ गई. दीज आर वेरी सिंपल. एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग बेसिक क्वेश्चन. सो जस्ट दैट आपका जो डर है बड़ी एक्सप्रेशंस को देख के भागने का, वो हट जाए. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द अदर प्रॉब्लम. Now let us take the same question and apply this into another problem. कैसे? अब की बार हमसे पूछा क्या जा रहा है? सेम एक्सप्रेशन में you need to find value of this particular expression, right? अब नोटिस करो ये थोड़ा डिफरेंट है. इसमें क्या आ रहा है? A0 माइनस A1 का स्क्वायर. एक तो पहली बात क्या आ रहे हैं? स्क्वायर्स आ रहे हैं, और फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है. ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आई विल टेल यू. ठीक है, जबकि ये थोड़ा टफ है, इट इज नॉट इन दी स्कोप ऑफ जेई मेन्स, बट स्टिल वील डू इट टू अंडरस्टैंड एंड मेक श्योर दैट हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए. तो पहले तो मैंने ये एज इट इज लिख दी, राइट? एक सीरीज तो मैंने इसको एज इट इज यूज कर लिया. a2n x raised to power 2n, right? Let me now take another series which is by replacing x by minus 1 by x. Now this is something important and this will only come with practice. I cannot tell you any short trick for this. This is all coming by practice. तो ये देखो, अगर आप x को 1 by x से minus 1 by x से रिप्लेस करोगे हर जगह, तो RHS में भी करना पड़ेगा और LHS में भी. तो ये कुछ इस तरीके की बनेगी. यहाँ पर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए ना, शुरू हो जाएगा.
एक्स की पावर 2n बाय एक्स की पावर, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मैंने यहां पर करा क्या है, आई हैव रिप्लेस्ड x बाय -1/x। अब ये कुछ कर सकते हो क्योंकि दोनों तरफ क्या है, बराबर है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटीज आर ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। बस हम ये मान के चल रहे हैं कि एक जीरो ना हो तो -1/0 एब्सर्ड चीज बन जाएगी। ओके, अब मुझे करना क्या है वो नोटिस करते हैं। मुझे चाहिए था a0 स्क्वायर a1 स्क्वायर, वो कब आएगा नोटिस करो, जब ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी। और नोटिस करो मैंने -1/x क्यों रिप्लेस करा है, ऑटोमेटिकली देखो ये माइनस वाला साइन भी आ रहा है उसमें, सो माइनस भी आ जाएगा। सिमिलरली a2 और a2 स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कमाल की बात क्या हो रही है बता सकते हो, आप नोटिस करो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हर टर्म में, इसमें क्या है 0, x 1/x क्या हो गया 0, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर 0, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करो क्या हो गया 0। सो आर टारगेट इज टू एक्चुअली मल्टीप्लाई देम, मल्टीप्लाई कर दो इन्हें आप। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने में बनेगा क्या पर, ये LHS तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 + x स्क्वायर, राइट, 1 - x, और ये तो 1 + x स्क्वायर ही रहेगा, और ये सारा कुछ इस तरीके से बनता, राइट। इसमें टर्म्स तो बहुत सारी आएंगी, डोंट गेट कंफ्यूज, मेरे को ये नहीं कह रहा कि एक ही टर्म आएगी, मैं कौन सी बात कर रहा हूं, मुझे वो वाली टर्म चाहिए जिसमें आपके पास क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट टर्म आ रही है ऑफ एक्स। क्यों, उससे मेरा फायदा क्या हो रहा है, नोटिस करो कुछ ऐसी चीजें बन रही हैं यहां पर, ठीक है। इसमें मेरा फायदा क्या हो रहा है, जब मैं इसमें बात कर रहा हूं उस टर्म की जिसमें आपका x कैंसिल हो रहा है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0। देयर माइट बी वेरियस टर्म्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टर्म्स विच हैव कोफिशिएंट x इक्वल टू 0। तो LHS में भी वही होना चाहिए। तो टारगेट क्या रिड्यूस हो गया, दिस a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस अप टिल जो ऐसे जा रहा है, दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 0 इन दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी। तो LHS को भी अब जरा थोड़ा रिजॉल्व करें, क्या बने 1 + x + x स्क्वायर, इसका एलसीएम लोगे तो देखो क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 रेज टू पावर n, और डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूं मैं, इसके नीचे आएगा x की पावर 2n, लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें एक और देखो, ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसमें बड़ी सारी चीजें पूछी जाएंगी आपसे। अगेन वी हैव अ फॉर्मूला हियर, एल्जेब्रिक फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल, x की पावर 4 + x स्क्वायर + 1 क्या होता है, याद आया, x स्क्वायर + x + 1 into x square minus x plus 1, yes this is the formula that we have to use here। so जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है आपकी वो किस में रिड्यूस हो गई, हमें निकालना था यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, ये किस में कन्वर्ट हो गई सारी, 1 + x स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर भी n आएगा, डोंट गेट कंफ्यूज, या x की पावर 4 रेज टू पावर n और डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 2n, राइट। आपको चाहिए कि इस पूरी क्वांटिटी में जो ये लिखी हुई है यहां पर, इस पूरे नंबर में क्या हो, x की पावर 0। x की पावर 0 कब आएगी, जब ऊपर न्यूमरेटर में भी क्या डिग्री होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास x की पावर 2n, तो न्यूमरेटर में भी क्या होना चाहिए, x की पावर 2n। so this question actually gets converted to finding coefficient of x raised to power 2n from the numerator, that is 1 + x + x square। क्वेश्चन इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है सर, हमें ये कैसे पता चलेगा, डोंट वरी, वेरी सिंपल, क्वेश्चन में दे तो रखा है भाई आपको, नया क्वेश्चन क्यों बनाना है हमने। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, देखो 1 + x + x स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू a0 + a1x, राइट, x स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। इसमें एक मैं बीच वाली टर्म लिख दूं जरा, देखो an x की पावर n आती और ये आगे चलता रहता कहां तक, an 2n x 2n, राइट। इसमें और इसमें फर्क कितना है, जो हमारी ओरिजिनल अब थी और इसमें, यहां पर नोटिस करो रिप्लेसमेंट किसकी हो गई, एक्स स्क्वायर, यहां था x, यहां x की पावर 4, यहां क्या था x स्क्वायर, सो यू हैव जस्ट रिप्लेस x बाय x स्क्वायर इन दिस। अगर मैं यहां लिखूं तो यहां पर क्या होगा, रिप्लेस x बाय x स्क्वायर, तो यही चीज बन जाएगी
जो आपको चाहिए। तो यार आपका RHS में भी तो चेंज होगा जगह जगह, तो ये क्या बन जाएंगे, A0 A1 एक्स स्क्वेयर A2 एक्स की पावर 4, यस। तो ये सारा क्या बन जाएगा, AN एक्स की पावर 2n, इस तरीके से आगे बढ़ के A2n एक्स की पावर 4n में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें चाहिएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2n, वी हैव गॉट द आंसर, वो देखो ये छुपा हुआ। सो द आंसर टू दिस होल प्रॉब्लम इज नथिंग बट व्हाट, a रेस टू an। हमें चाहिए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2n, वो क्या आ गई आपके पास, an, वही तो आंसर है। आपको क्या चाहिए था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2n। So the answer to this particular all problem is nothing but this is the required answer. Okay, re-revise this particular stuff to get hold of it, what I have done, and remember the pattern. Okay, let's take another problem on the properties of coefficients to wind this concept. So it says 1 plus x is, again we know this is the thing, and we are required to find the value of this particular expansion. पैटर्न देखें फिर से, पैटर्न मेरा काम क्या है, आपको सिर्फ ये रियलाइज कराना कि अगर पैटर्न आप पकड़ लोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट। तो अगला ये यहाँ होना चाहिए था C2 और C3, और सॉरी नॉट दी प्लस, लेट मी करेक्ट दिस फॉर यू। सो यस, तो ये पैटर्न जो है चलता जा रहा है कब तक, व्हेन यू गेट Cn-1 प्लस Cn, राइट। और डिवाइड क्या हो रहा है आपका नीचे यहाँ पर सारी जगह, C1 C2 C3, ये कब तक चल रहे हैं, Cn तक, राइट। अब पैटर्न तो समझ में आ गया कि भाई दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ऐड हो रही हैं, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कंसेक्यूटिवली ऐड करे जा रहे हैं। अब सी, आई हैव ऑलरेडी रिटन द फॉर्मूला दैट यू पीपल हैव टू यूज, NCR अपॉन NCR-1, बट वो कैसे, अब देखो, कैन आई से दैट दिस NC0, ओ सॉरी NCN, ये NCN है ना, NCN किसके बराबर होता है भाई, NC0 के बराबर होता है। तो मेरी जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर को मैंने क्या लिख दिया, C0 C1 C2 C3, कब तक जाएगा अभी, n वाली टर्म तो मैंने क्या बना दी C0, तो लास्ट टर्म क्या बनेगी Cn-1, कैन आई से सो, ठीक है। और अब मैंने क्या करा, C0 को इंडिविजुअली इसके अंदर भेज दिया, C1 को इसके अंदर भेज दिया, C2 टर्म को इसके अंदर, और Cn-1 टर्म को इसके अंदर सेंड कर दिया। तो बनेगा क्या, देखें ये क्या हुआ, डिवाइड करने के बाद देखो 1 प्लस C1 बाय C0, अगली टर्म क्या बनेगी 1 प्लस C2 बाय C1, अगली क्या हो जाएगी 1 प्लस C3 बाय C2, सो ऑन टिल लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी बताओ, Cn बाय Cn-1। अब देख रहा है ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर, यस। तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस n की वैल्यू तो क्या है यहाँ पर सब जगह n है, ठीक है। तो अब मैं अगर इसी में तुम्हें समझाना चाहूँ, C1 बाय C0 क्या वैल्यू हो जाएगी n की, तो n माइनस r इज 1 बाय 1, सो दिस इज नथिंग बट n, आंसर आ गया, लिख दो भाई 1 प्लस n, ठीक है जी। अगला देखो C2 बाय C1, C2 बाय C1 क्या हो जाएगा, n माइनस 2 प्लस 1 बाय 2, राइट। ये क्या बन जाएगा, n-1 बाय 2, लिख दो, ये कितना हो गया 1 प्लस n-1 बाय 2। फिर से पैटर्न बन रहा है, कैन यू टेल मी दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, यस यू आर थिंकिंग राइट, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, n-2 बाय 3, ठीक है जी। अगली टर्म क्या हो जाएगी बता सकते हो, इसी तरीके से फिर से, सॉरी प्लस नहीं आएगा, लेट मी जस्ट करेक्ट इट फॉर यू। ओके, सो लास्ट टर्म दैट वी विल ऑब्टेन हेयर क्या बन सकता है बताओ, वो क्या आएगी 1 प्लस 1 बाय n, राइट। एंड इफ यू ट्राई एंड सॉल्व देम ऑल ऑफ दीज, सो ये क्या क्या बन रही है देखो, 2 भेजोगे तो ये फिर से क्या बन गई n+1 बाय 2, ये वाली टर्म भी n+1 बाय 3, और लास्ट वाली टर्म भी मेरी क्या बन गई n+1 बाय n। तो n कितनी बार आ रहा है भाई, n+1 कितनी बार आ रहा है इसमें, नोटिस करो, इट इज रिपीटिंग n टाइम्स, और नीचे क्या आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टिल n, दिस इज n factorial. So this is the required answer to this particular problem, and this is how you are asked to solve this. This is the answer. Got it?
So this is the application of this particular formula, and that is the reason I have taken this question. Okay. Now let us get into some advanced properties of coefficients also, and this concept can also be done by the differentiation and integration concept. So if the time permit, we will do that in the today's class also, otherwise we'll take it some other day. Let us understand these formulas. So this is your first formula, this is your second formula, and third formula, which you have to remember. First is pretty straightforward. It says C0 plus C1 plus C2 up till Cn is 2 raised to power n, right? The other formula here it says RCR. So RCR means सबसे पहले क्या से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, 1C1. क्यों R0 डालोगे तो कोई सेंस ही नहीं ना, 0 into C0 is 0. Then you will get 2C2, 3C3, right? This goes till NCN. So the formula that you have to remember is इसमें क्या हो जाता है, n 2 raised to power n minus 1, right? Third, what it states, ये second था. Third क्या कहता है आपका, देखो, third means R square CR. Now you are getting hold of 1 square C1, 2 square C2, 3 square C3. जो बेस है उसका स्क्वायर है उसके आगे मल्टीप्लाई में, दैट इज n square Cn. तो ये क्या हो जाता है, n into n plus 1, 2 raised to power n minus 2. फिर से अगर देखो पावर में पैटर्न है, क्या पैटर्न है, रिपीट करने की कोशिश करो मेरे साथ. सो दिस इज 2 raised to power n. आपने क्या करा, एक टर्म बाहर लिखनी शुरू कर दी जो बेस है, तो वो क्या होगी, पावर एक कम हो गई और n बाहर आ गया. ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया इसको, ऐसे समझ लो. फिर अगली टर्म में क्या हुआ, यही चीज n प्लस 1 बन के बाहर आया और ऊपर क्या हो गया, n माइनस 2 हो गया. ठीक है, n फिर n प्लस 1 और 2n माइनस 2. ठीक है, गॉट इट. जो नीचे लिखे हुए हैं वो क्या प्रॉपर्टीज है सारी ये वाली, इनमें अगर आप प्लस माइनस करना शुरू कर दोगे तो ये तो हमें पता ही है जीरो, हमने अभी देखा. इनफैक्ट ये सारे नीचे वाले भी जीरो हैं. कमाल की प्रॉपर्टीज क्या है, अगर ये सी नॉट तो आएगा ही नहीं, देखो सेकंड वाले में, तो इसको तो काट दो. सी नॉट तो आपके पास बचना ही नहीं चाहिए. ठीक है, तो सी नॉट की जगह अगर मैं स्टार्ट करता हूँ C1 से, C1 माइनस 2C2 प्लस 3C3 माइनस 4C4, इसका भी सम क्या है, जीरो. सिमिलरली C1 माइनस 2 स्क्वायर C2, 3 स्क्वायर C3 minus 4 square C4, this also reduces to 0, right? बहुत लोगों को हो रहा होगा कि सर इसका प्रूफ क्या है. Let's not get into the proof, we already are doing so much. I can introduce the proof, in fact वो derivative और integration से आ जाएगा, but we don't want to get into it. Just for the time being, just try and remember the formulas. So these three formulas should be by hearted. I'll just tell you how to apply them in the problem. Okay, let's see, take this example. कुछ आपसे इस तरीके का पूछा जा रहा है, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि इसमें कौन सी वाली एक्सपेंशन यूज होगी, समीशन कौन सा, आर स्क्वायर सी आर, बिकॉज स्क्वायर आ रहा है बाहर, और आर कहाँ से शुरू होगा, जीरो से नहीं 1 से. ये हमने क्या फॉर्मूला करा, n इंटू एन प्लस 1 2 raised to power n माइनस 2. ठीक है, किसी तरीके से ये यूज करना है. तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले व्हाट यू विल डू, फाइंड टीआरएथ टर्म. तो इसकी टीआरएथ टर्म कौन सी है, बता सकते हो मुझे भाई. सी की जगह तो क्या आएगा, सी आर प्लस 1, पहली बात. क्यों, C2 है ना, C3 पहली टर्म में, अगर मैं यहाँ CR लिख देता हूं तो गलत हो जाएगा. ठीक है, बताओ. और यस, सम पीपल आर सेइंग इट राइट. अगर नीचे नोटिस करो तो AP नहीं बन रही. 2 इज द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस क्या 3, तो उसको ऐसे लिख दो n माइनस 1 या फिर r माइनस 1 कर दो. ठीक है, ठीक है, तो ये वाली nth टर्म बन जाएगी और इसका स्क्वायर. तो ये क्या बन गया, रिड्यूस होके, सॉरी आई हैव जस्ट डन अ मिस्टेक. यस, सो दिस विल बी दी nth टर्म और इसका स्क्वायर. तो nth टर्म में ये देखो क्या बना, क्या बताओ जरा, 3 और ये क्या हो गया, 3n माइनस 1 स्क्वायर. तो अगर मुझे इसकी r के अंदर वैल्यू लिखनी थी तो ये क्या हो जाएगा, 3r माइनस 1 स्क्वायर CR प्लस 1. यही होगा ना भाई, हाँ है ना. ठीक है, तो ये तो हमारी आ गई टी आर टर्म. हमें निकालना था सम, तो सम तो क्या हो जाएगा, समीशन टी आर. ठीक है, समीशन टी आर कर देंगे यहाँ पर. बट अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई, हमारे पास फॉर्मूला जो था उसमें नीचे सी में क्या आता था, आर. यहाँ पर नीचे सी में क्या है भाई, आर प्लस 1.
तो ये अब दिक्कत हो गई हमारे साथ, हमें ये रिजॉल्व करनी है ये चीज़। कैसे रिजॉल्व करें इसे? तो देखो रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे CR+1 नहीं चाहिए था, मुझे तो चाहिए था वी रिक्वायर, लेट मी राइट, वी रिक्वायर टर्म्स ऑफ CR के पैटर्न में चाहिए। यहाँ पर क्या आ रहा है R+1, सो मैंने जो टर्म था TR इज इक्वल टू 3R-1 स्क्वायर CR+1, मैंने दोनों जगह रिप्लेस क्या कर दिया, यहाँ रिप्लेस R बाय R-1, तो ये क्या बन जाएगा, T ऑफ R-1 इज इक्वल टू 3R-4 स्क्वायर CR, यही बन जाएगा। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि R विल स्टार्ट, अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू। सो R हेयर, R विल स्टार्ट, कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 2 नॉट फ्रॉम 1। प्रॉब्लम ये हो गई, सो R विल स्टार्ट फ्रॉम 2। क्यों? आप देखो R को 2 पुट करो तो यहां पर क्या मिलेगा, T1। इफ यू पुट R इक्वल टू 2 यू विल गेट T इक्वल टू 1। अब R को जरा 2 पुट करो, यहां पर क्या आ रहा है, देखो मैच हो रहा है जो तुम्हारा मैंने लिखा हुआ है ऊपर, पहली टर्म बन गई। ठीक है, अगर मैं R को 3 पुट करता हूं, अब यहां मुझे मिलेगा 2, चेक करते जाओ, देखो अगली टर्म बनती जा रही है। ठीक है, ये क्या हो गया, T3। तो दैट मीन्स ये पैटर्न तो सही बन गया, ये वाला जो पैटर्न आपने निकाला है, दिस पैटर्न इज करेक्ट। सो नाउ लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू योर समीशन प्रॉब्लम। सो अगेन कमिंग बैक टू हेयर, सो इट बिकम्स R इज इक्वल टू, कहां से शुरू होगा भाई, R कहां से शुरू हो रहा है, 2 से, कितना बन गया 3R-4 स्क्वायर राइट CR, और कहां तक जाना है आपको, N-1 टर्म्स तक जाना था। ठीक है, ठीक है, तो सिंस अगर आपको N-1 टर्म्स तक जाना है तो यहां पर नोटिस करो, यहां पर S की जो ऊपर समीशन की हायर पावर है वो N होगी, N-1 नहीं, बिकॉज 2 से N कितने नंबर हो जाएंगे, N-1। ठीक है, ये गलतियां होती हैं इन टाइप के क्वेश्चन में, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड टफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये देखो आगे बना क्या, ये अब कुछ इस तरीके से करो कि अब तो ये समीशन का प्रॉब्लम बन गया, अब ये बायनॉमियल का काम खत्म। तो ये कितना हो गया, 9R² CR। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 16 बाहर कर, प्लस 16 सॉरी, 16R2 गोज टिल व्हाट, N कितना CR। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं, और माइनस एक अगली टर्म क्या बनेगी, माइनस जो आपकी 2AB वाली टर्म बननी थी वो कितनी हो जाएगी, 24 समेशन R गोज फ्रॉम 2 to N। ठीक है, कितना आएगा बताओ, 24 तो हो गया RCR राइट, ये बन जाएगी। अब देखो इसको करने में एक दिक्कत क्या हुई, ये जो सारी चीजें हैं ये कहां से शुरू हो रही हैं, R इक्वल टू 2 से राइट, और हमारे सारे फॉर्मुलेस कहां से होते हैं, या तो R इक्वल टू 0 से या R इक्वल टू 1 से। तो सॉरी, तो रादर देन मैं पहले यहां जाता, तो मैंने अब इसमें क्या करा, एक चेंज कर दिया छोटा सा, मैं S को मैंने यहां पर पहले R इक्वल टू 1 कर दिया राइट। अब सिंस आपने R को 1 कर दिया जो कि 1 से शुरू नहीं होना था, तो 1 फालतू आ गया, तो वो वाली टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इफ आई पुट R1 हियर, व्हाट यू विल गेट, -1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा C1। ये भी तो कर सकता हूं, मैंने अब 1 से लेकर n तक कर दिया, और जो 1 वाली पहली वाली टर्म बनती वो मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दी। ठीक है, ओके। सो अब ये ज्यादा आसान क्वेश्चन हो जाएगा, कैसे, अब देखो आप इसे अलग अलग करके। सो ये क्या बन गया, 9R² समीशन R फ्रॉम 1 to N CR। अगला क्या बनेगा, 16 समीशन R गोज फ्रॉम 1 to N CR। और अगला जैसे हमने लिखा ही हुआ है 24 समीशन R गोज फ्रॉम 1 to N R CR। ठीक है, और -C1 तो अलग से है ही अभी आपके पास। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू डू दिस आफ्टर दिस स्टेप। सो फॉर्मूले एप्लीकेशन देखें आप, ये क्या हो गया यहाँ पर, इसको सीधा देखो यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, 9 समीशन R² CR, R वेरीज फ्रॉम 1 to N। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, ये देखो ये लिखा ही हुआ है आप लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला, तो ये क्या बन गया, this is nothing but what can I say about this is, so this is nothing but the formula then becomes here is 9। ठीक है, R² CR क्या बन जाता है आपका, n into n+1। ठीक है, 2 raised to power n-2। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखो, अगला है 16
आर गोज फ्रॉम 1 to n एनसीआर। अब ये है नॉर्मल एनसीआर वाला, ठीक है। नॉर्मल एनसीआर का फॉर्मूला क्या था भाई, कैन यू टेल मी? सो नॉर्मल एनसीआर क्या था, समीशन आर गोज फ्रॉम 0 to n एनसीआर इज 2n। बट यहां पर नोटिस करो वो कहां से शुरू होता था, आर इक्वल टू 0 से, यहां किससे शुरू हो रहा है, आर इक्वल टू 1 से। तो हमें मैपिंग करनी है पहले। सो अगर आप इसमें इसको ऐसे लिख सकते हो, आर की वैल्यू C0 डाल दो और अब बोल दो समीशन आर गोज फ्रॉम 1 to n 2n। बात तो बराबर हो गई। मैंने क्या करा, आर इक्वल टू 0 वाली वैल्यू डाल के आगे से समीशन एक शिफ्ट कर दिया। सो नाउ द आंसर टू दिस विल बिकम, आप इसको ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो यहाँ पर, 2n माइनस 1। क्यों 1, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। C0 इज नथिंग बट 1। आगे बढ़े, आगे है -24। ये क्या है, RCR। RCR का फॉर्मूला क्या होता था भाई, लेट अस जस्ट रिवाइज। तो समीशन RCR, और पहली बात RCR शुरू कहां से होता है, 1 से, गोज टिल n। कितना हो जाएगा भाई ये, यस। सो पीपल हु हैव जस्ट रिमेंबर्ड इट इज NC2 - 1। वो वैल्यू यहां पुट करो तो ये क्या बन गया, n 2n - 1। और ये NC1 कितना होगा, n। दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी आर लुकिंग फॉर इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इट इज नॉट ऑफ द जेईई मेंस लेवल। आई हैव जस्ट टेकन बाय चांस, अगर कभी आ जाए तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। ऑलराइट, ठीक है, चलो। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें एक्सप्रेशन आपका कुछ किस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है जनरली। ठीक है, एक अंडर रूट के अंदर होगा a प्लस अंडर रूट बी रेज टू पावर n। वेरिएशन हो सकता है इसमें, कैसा, कुछ ऐसा भी हो सकता है, a प्लस बी टाइम्स रूट सी रेज टू पावर n। सो एक्चुअली में ये दोनों एक ही चीज है। सो इसमें से अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस, और क्वेश्चन कई बार कैसे आ जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन बना देंगे और आपसे इस तरीके की वैल्यू पूछेंगे कि इसकी वैल्यू बताओ, और रादर ये n इसमें अंदर की तरफ होगा। ठीक है, कैसे, इस तरीके से n, और ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आपको कैसे सॉल्व करना है, वील फॉलो दी 4 स्टेप प्रोसेस। 4 स्टेप्स कौन कौन से, स्टेप 1 इज राइट द गिवन एक्सप्रेशन एज इक्वल टू i प्लस एफ। ठीक है, तो मैं अभी इसको क्वेश्चन में लेके समझाऊंगा, बट सिर्फ यहां दिखाने के लिए अभी ले लो ये n। ठीक है, ये GIF नहीं है, ये नॉर्मल ब्रैकेट है। सो दिस बिकम्स i प्लस एफ। ठीक है, वेयर i डिनोट्स दी इंटीजर पार्ट, f बिकम्स दी फ्रैक्शनल पार्ट। फिर हम कहते हैं कि हमें एक g और डिफाइन करना है, कैसे, जो प्लस था तो इसका जगह क्या कर दो माइनस। और कीप इन माइंड कि ये जो माइनस लेने के बाद g हमेशा आपका कैसा नंबर आएगा, विच लाइज बिटवीन 0 and 1। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, ये हमेशा क्वेश्चन ही ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, थर्ड स्टेप से या तो g ऐड करोगे या g सब्ट्रैक्ट करोगे। तो अगर आप g ऐड करते हो तो मतलब राइट हैंड साइड देखो कैसी बनेगी, if प्लस g इज इक्वल टू समथिंग हेयर। ठीक है, तो ये केस 1 क्या कहता है, इफ g इज बीइंग एडेड। तो देखो यहां पर एक क्वांटिटी क्या बन रही है, f प्लस जी, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ये क्यों है, मैं अभी पहले समझा देता हूं आपको। यहां पर आप कहते हो भाई f भी फ्रैक्शन है, मैंने यहां क्या कहा, f इज फ्रैक्शनल पार्ट, सो दिस इज अ फ्रैक्शन। g मैंने क्या कहा, हमेशा ऐसा आएगा जो कि क्या होगा, फ्रैक्शन। तो इन मैथ्स फ्रैक्शंस ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। नेगेटिव वाले को मैथ्स में फ्रैक्शन नहीं कहते। ठीक है, फ्रैक्शंस आर ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। सो आप क्या कर रहे हो, देयर आर 2 फ्रैक्शंस आर एडेड। ठीक है, 2 फ्रैक्शंस अगर ऐड करते हो तो क्या मैक्सिमम इंटीजर मिल सकता है, कैन यू टेल मी? यू कैन ओनली गेट 1 इज इंटीजर। 2 फ्रैक्शंस को ऐड करने पे कौन सा एक इंटीजर मिलेगा, वो 1 ही हो सकता है, या तो फिर वो 0 मिलेगा कब, जब दोनों ही 0, तो फ्रैक्शन नहीं बचे, और 1 हो नहीं सकता, फ्रैक्शन कैन नॉट टेक वैल्यू 1। ठीक है, और अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते तो क्या बनता, i f प्लस की जगह माइनस जी इज इक्वल टू समथिंग है, राइट। इस अभी समझाऊंगा क्या समथिंग है, ये समथिंग एक्चुअल में एक इंटीजर होगा जिसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इधर क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू g इस केस में, राइट। लेट मी टेक बोथ दीज इन एग्जांपल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन। ओके, देखो अब क्वेश्चन आया, फाइंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, हमें इंटीग्रल पार्ट निकालना है, इंटीग्रल। और यही क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता था, फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। यहां पर ये बोल देंगे कि ये GIF है, तो बात बराबर है, क्वेश्चन सेम है। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, स्टेप वाइज चलते हैं। आपने करना क्या है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को एज्यूम कर लो दैट दिस इज
I plus f, where I is the integer part of this number and f is the fractional part of this number. Second क्या कहा था? Assume g to be बीच में माइनस के साइन के साथ, राइट? और मैंने यहां पर कहा भी क्या था कि g कैसा नंबर होगा? g एक फ्रैक्शन होगा. नोटिस करो g फ्रैक्शन आ रहा है. व्हाट इज रूट टू? रूट टू इज समथिंग 1.414, राइट? और अब अगर इसमें माइनस करोगे 1 तो ये क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन. ठीक है. अब हमें कैसे पता चलता है कि हमें इसे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वो नोटिस करते हैं. तो रूट टू प्लस 1 रेज टू पावर 6 क्या एक्सपेंशन बनेगी? जरा एक्सपेंड करो इसे. सो दिस विल बिकम 6c0 रूट 6 की रूट 2 की पावर 6 प्लस 6c1 रूट 2 की पावर 5. कुछ इस तरीके से बनेगी. 6c2 रूट 2 की पावर 4, इस तरीके से. और g को एक्सपेंड करें जरा. रूट 2 माइनस 1 रेज टू पावर 6, ये क्या बनेगा? 6c0 रूट 2 की पावर 6 माइनस 6c1 रूट 2 की पावर 5. तो ये ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, हाँ या ना? अब इसमें से मैं ये कर क्यों रहा हूं वो देखो. अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं, इन दोनों को, लेट्स से इफ आई ऐड देम, तो कौन सी टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं? अगर मुझे ऐड करना है इनको, तो यार ये वाली दो टर्म्स कैंसिल हो रही है, ये देखो. और ये दो कैंसिल क्यों हो रही है? और इनका फायदा क्या है? ये इर्रेशनल टर्म्स है. दे आर नथिंग बट इर्रेशनल टर्म्स. इर्रेशनल टर्म्स क्यों है? क्योंकि इसमें 2 की पावर क्या है देखो, 5/2, 5/2, अगली क्या आती? 3/2. सो इफ यू हैव एडेड देम, तो ये आपका एक्सप्रेशन बनता क्या? 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 रेज टू पावर 6. ये क्या हो जाता? 2 टाइम्स 6c0 रूट 2 की पावर 6, राइट? प्लस 6c2 रूट 2 की पावर 4, 6c4 रूट 2 की पावर 2, और एक आ जाता है 6c6. दैट्स इट. ठीक है. और अगर नोटिस करो, जो ये वाली क्वांटिटी है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये है क्या? ये था i प्लस f, ये था g. तो दैट इज मीन्स आपने एक्चुअल में करा क्या है? यू हैव एडेड g. तो आपको g का क्राइटेरिया अगर लिखना है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट g शुड बी एडेड और इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, वो क्या है? कि जो ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास, यू शुड बी लेफ्ट विद ओनली टर्म्स विच हैव व्हाट? इंटीजर पावर्स. ठीक है. आपकी बचनी कैसी चाहिए? विच हैव इंटीजर पावर्स, ये बचनी चाहिए. ठीक है. ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वो आपके ऊपर है. ठीक है. और ये वाली अगर टर्म्स देखी जाए सारी, एक और अच्छा रूल इसमें, वो जो आपको याद होना चाहिए, क्या? NCR जो भी हो, दिस इज ऑलवेज इंटीजर वैल्यू, दिस इज ऑलवेज इंटीग्रल. ये हमेशा आपको आंसर कैसा देगा? इंटीजर ही देगा. दिस कैन नॉट टेक अ फ्रैक्शनल वैल्यू. तो आपके पास जो यहाँ पर टर्म्स आ रही हैं सारी, जरा नोटिस करें. 6c0 इंटीजर, ये भी क्या बन गया? इंटीजर. इंटीजर, 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 ऑल ऑफ देम आर इंटीजर, राइट? So that means right hand side is a integer. For the timing, let me just write as integer, right? I is integer, so this remaining quantity should also be integer. और अभी मैंने पढ़ाया, अगर आपके पास f plus g integer होना है, right? If this is integer, this is only possible when this is equal to 1. Now just substitute this value and you will get your answer. So this actually implies that I plus 1 is equal to integer, where integral part then becomes this integer minus 1. So आपका टारगेट अब रिड्यूस किस में हो गया? just calculate the value of this particular expression, right? तो ये क्या बना? 2 into, ये देखो 2 क्यूब हो गया, 2 क्यूब इज 8. 6c2 निकाल लो, कितना हो जाएगा? 6 into 5/2, that is 15, इंटू ये कितना आ जाएगा? 2 by, ये पावर कितनी हो जाएगी? 4. ठीक है. प्लस 64 और 62 एक ही होते हैं, तो ये 15 इंटू कितना आएगा? ये बताओ. 2 प्लस 1, कुछ इस तरीके का बन गया ये. ठीक है. अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो देखो क्या बन रहा है, राइट? सो द फाइनल स्टफ दैट यू विल गेट इज 198. सो दिस RHS becomes 98. सो ये क्या हो गया? 198 minus 1. So the integer part of this problem is nothing but 197. This is the answer we are looking for. This is your final answer, right? This is how you find the integer part of the binomial expansion. Okay.
नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड जब g की जगह हमें माइनस g करना पड़े, ठीक है, वो देखते हैं कैसे होगा। दिस इज r इज इक्वल टू, ठीक है, अब की बार मैंने r को फिर से क्या लिख दिया, सबसे पहले i प्लस f तरीके से, वेयर f इज द फ्रैक्शनल पार्ट, जो कि देखो क्वेश्चन में दे भी रखा है, r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर r, एनी नंबर माइनस इट्स इंटीजर पार्ट विल बी इट्स फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, विच इज गिवन टू बी 6√6 प्लस 14 रेज टू पार्ट 2n प्लस 1, ठीक है। फिर से मैंने g क्या एज्यूम करा यहां पर 6√6 माइनस 14 रेज टू पावर 2n प्लस 1, यानी आप खुद सॉल्व करना, 6√6 जो है इट विल बी 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ये आप खुद चेक करोगे घर पे, आज होमवर्क है आपका, आई एम लीविंग दैट पार्ट। आपको फाइंड क्या करनी है, वैल्यू r इंटू एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो फाइंड आउट करनी है वो तो देखेंगे बाद में, पहले हम अपना क्या लगाते हैं, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, जरा लिख के देखो इन दोनों टर्म्स को, पहले पता करना है कि ऐड करना है जी को या फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, वो कैसे पता चलेगा, देखो 2n प्लस 1 c0, पहली दो टर्म से ही पता चल जाता है कि करना क्या है। इसकी पावर क्या हो जाएगी 2n प्लस 1, और इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होती 2n प्लस 1 सॉरी दिस विल बी c1, 2n प्लस 1 c1 6√6, इसकी पावर अब की बार क्या होगी 2n और 14, ये आना शुरू होता। आंसर मिल गया तुम लोगों को, क्या करना चाहिए, इन दोनों में से इर्रेशनल टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म, √6, ये इवन पावर, तो रूट गायब हो जाएगा, तो दिस बिकम्स अ रैशनल टर्म। इसका मतलब ये वाली टर्म जो है, जो ये पहली टर्म है, ये ऑड मैन आउट है इस बार, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है 2n प्लस 1 इज अ ऑड नंबर, वो रहेगा, तो हमें ये इस बार हटानी है, राइट। तो अगर आप इसको यहाँ पर लिख के देखो, जी की कैसे एक्सपेंशन होती, कहेगा 6√6 माइनस 2n प्लस 1, राइट, 2n प्लस 1 c1, कुछ इस तरीके से चलता रहेगा ना आगे ये। बट अगर आपकी बार आप इन्हें ऐड करते हो तो ये दोनों बच जाएंगी, बल्कि आपकी इर्रेशनल टर्म्स रह जाएंगी, तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, we'll have to subtract them to cancel this term। तो इस बार जब आप सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तो क्या बनेगा, i प्लस एफ माइनस जी कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स, कौन सी टर्म आएगी आपकी बार, सॉरी मैंने लगता है गलत टर्म काट दी, आपको ये वाली तो बचानी थी, राइट, लेट मी जस्ट इरेज दिस फॉर यू। सो हमें ये टर्म नहीं हटानी थी, हमें कौन सी टर्म हटानी थी, ये वाली, माइनस करके ये वाली टर्म हटेगी, ठीक है, बचेगी बल्कि वो वाली टर्म, तो बची क्या वो देखो 2n प्लस 1 c1 6√6 2n, ठीक है, और आगे मुझे लिखने की जरूरत नहीं, आगे ऐसे चलती रहेगी। बट मुझे ये पक्का क्या पता चल गया अब, फिर से ये राइट हैंड साइड क्या है, शॉर्ट इंटीजर, ठीक है, अगर ये इंटीजर है तो इसका LHS भी क्या होना चाहिए, इंटीजर, विच इंप्लाइज आई तो ऑलरेडी इंटीजर है, तो f माइनस जी शुड बी इंटीजर, f माइनस जी कैन ओनली बी इंटीजर विच इज 0। करके देख लो आप, कोई भी दो फ्रैक्शन हमेशा क्या होते हैं, f एंड g आर ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। कोई भी ऐसा नंबर लो जिससे इंटीजर आए, तो जो इंटीजर आएगा वो क्या होगा, 0 ही होगा। तो इससे हमें क्या पता चला, f इज इक्वल टू g। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, द वैल्यू ऑफ r इंटू एफ, r तो हमें पता ही है, और हमें क्या पता चल गया, f कितना है g, क्वेश्चन ओवर। तो r तो आपका है 6√6 प्लस 14 रेज टू पावर 2n प्लस 1, g क्या है 6√6 माइनस 14 रेज टू पावर 2n प्लस 1। ये देखो किसका फॉर्मूला बन गया भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। So this is nothing but 36 into 6 minus 14 square raised to power 2n plus 1, and if you solve this, this is nothing but 20 raised to power 2n plus 1, which is the required answer. That's it. ठीक है, तो हमने दोनों क्वेश्चन ले लिए जिसमें एक बार g ऐड हो रहा है और एक बार g सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, दोनों को दोबारा पढ़ो जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ये वाला, ठीक है। चलो, Now let us take the other concept which is finding the greatest term, ठीक है, greatest term कैसे निकालनी है इस particular expansion में। There are two methods of solving this. I am just highlighting that particular thing where you can just directly apply the formula. So this is the formula that you have to use, right? पहली बात, particular value of the greatest term कैसे पूछी जाती है कि find the value
ऑफ दिस एट x इज इक्वल टू लेट्स से सम वैल्यू, ठीक है, ये गिवन होगी आपको, ये जो चीज है ये आपको क्वेश्चन में क्या होती है, गिवन होती है, तो आपको वो वाली वैल्यू यहां पर पुट करनी है। फाइंड दी नंबर k विच इज n+1 इंटू मॉडुलस x, तो हो सकता है x आपको दे रखा हो, फाइंड दी वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू -1/3, तो आप जब मॉड x लोगे तो वो क्या लेना है, 1/3 ही लेना है, ठीक है। n+1 मॉड x 1+x, k दो तरीके से आ सकता है, या तो k आएगा क्या इंटीजर या फिर मिक्स फ्रैक्शन। सो इफ k इज इंटीजर देन tk एंड tk+1 बोथ आर इक्वल इन द ग्रेटेस्ट टर्म, बट इफ इट इज नॉट एन इंटीजर तो आप क्या करोगे, tk के आगे क्या लगाओगे, पहले मॉड, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या मतलब है कहने का, हो सकता है k की वैल्यू आए 4.3, ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, t4+1 दैट मीन्स t5 इज द ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। ग्रेटेस्ट टर्म का क्या मतलब है, आपके पास ऑब्वियस ही बात है बाइनोमियल एक्सपेंशन में बड़ी सारी टर्म आएंगी, उसके अंदर जब आप x की वैल्यू पुट करोगे जो क्वेश्चन में गिवन है, तो सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी, दैट इज द ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। इस फॉर्मूले को देखते हैं, ये जो फॉर्मूला है कि इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, ठीक है, ये फॉर्मूला बस याद होना चाहिए आपको। ओके, लेट्स सी हाउ वी विल अप्लाई दिस इनटू द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में आप देखें, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, एक्सप्रेशन इज 2x + 7 रेज टू पावर 10 एंड यू नीड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म व्हेन x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब पहले हम अपना फॉर्मूला फिर से एक बार इसके सामने लिख लेते हैं। फॉर्मूला वाज 1 + x रेज टू पावर n, के लिए हमने k निकालना था, k क्या निकाला था आपने, 1 + n mod x बाय 1 + mod x, राइट, क्लियर, ओके। लेट्स सी हाउ द फॉर्मूला विल नाउ चेंज फॉर दीज सर्कमस्टांसेस। तो सबसे पहले आपका जो एक्सप्रेशन है आप उसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा फॉर्मूला किसका था, 1 + x की पावर n का, तो दैट कुड बी डन इफ आई टेक 7 कॉमन, यहां इसको 1 बनाना है तो 7 कॉमन लूंगा तो क्या होगा, 7 की पावर 10, 1 + 2/7 x रेज टू पावर 10, ठीक है। अब ये वही चीज बन गई, तो अब नोटिस करो यहां पर n क्या है आपका, n इज 10। अब गलती ये नहीं करनी है कि हमें x को 3 ले लेना है, ये अभी भी गलत है। यहां पर नोटिस करो जब आप x को पुट करते थे तो ये पूरा का पूरा क्या था आपका x, दिस क्वांटिटी वाज x, नाउ द रोल ऑफ x इज बीइंग प्लेड बाय 2/7x, राइट, ओके। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी फाइंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आपको अब की बार x का रोल कौन प्ले कर रहा है, सो द x रोल इज बीइंग प्लेड बाय 2/7x, so when you put x equal to 3, so this actually becomes what, 6/7, got it। So the value of x that you will use for this particular question is not what 3, but you will use it as 6/7। अब अगर आप k की वैल्यू निकालो तो क्या बनेगी, देखो यहाँ पर 1 + n इतना हमारा 10, दिस इज 11, ठीक है, ये क्या हो गया 6 × 6/7 डिवाइडेड बाय 1 + 6/7, तो ये कितना हो गया 11, 66/13, right, this is what you will get, okay। So this becomes 66/13, so this is not a complete integer, ठीक है। इसका अगर हम GIF निकालें, अब GIF ऑफ 66k का GIF ऑफ k क्या हो जाएगा, GIF ऑफ 66/13 which comes out to be 5, ठीक है। तो हमें क्या पता था फॉर्मूले के हिसाब से, अगर GIF + 1 will be your greatest term, so this becomes T6 is the greatest term, so this B part is the answer to this particular problem, and this is how you solve this. Let's apply this in another problem. Okay, it says if the sum of the coefficients in the expansion of 1 + 2x raised to power n का आपको क्या दे रखा है, sum of coefficients, right, you are given this time sum of coefficients is equal to 6561। तो देखो कुछ ना कुछ तो दिया होगा हमें, यहाँ पर क्वेश्चन में n नहीं गिवन था, तो n निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है, sum of coefficients is being given। so how do we solve sum of coefficients, हमने करा है जो भी वेरिएबल आता है उसको क्या पुट कर दो 1, so this becomes 3 raised to power n is the sum of coefficients which is 6561, right। And if you further solve this thing, this is nothing but 3 raised to power n is equal to, this becomes 3 raised to power 8, right, so this implies n is equal to 8।
So by giving sum of coefficients, you are actually given the expansion. So the expansion is nothing but 1 plus 2x raised to power 8 is the expansion. Now you want the greatest term in the expansion when at x is equal to 1 by 2. Now there, see, if you see and if you compare it with the original expression, हमारा फॉर्मूला किसके लिए वैलिड था? 1 प्लस एक्स की पावर n के लिए. इस बार यहाँ पर 1 ही है तो उसकी हमें प्रॉब्लम नहीं है. The role of x is being played by 2x, so this becomes at x equal to 1 by 2. So this becomes what? It becomes 1, right? So k के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो k के लिए क्या करोगे? k क्या फॉर्मूला था? k is equal to 1 plus n मॉडुलस x by 1 plus मॉडुलस x. So x क्या यूज होगा? 1 by 2 यूज नहीं करेंगे. what will use? 1. So let's see what it will become then. 9 into 1 by 2. This is what? 4.5. Again it is not an integer. So k कई जगह क्या हो जाएगा? आंसर होगा t मॉडुलस GIF k plus 1, which is nothing but 4 plus 1. This time around t5 is the greatest term. So this is the what? Fifth term is the greatest term. This is the answer. Okay, this is how you solve. Now let us take the other concept, which is the multinomial theorem, right? What it says is that if you have multinomials, right, we have done binomial, these were 2, then we call this binomial, and they have multinomials. So up till n, and you are trying to find something raised to power n. This is the expression that you have to remember. N factorial by n1, n2, n3 factorial and n. What are n1? n1 are the powers of a1, a2, a3 and an respectively, right? And keep in mind this summation has to be done when n1, n2, n3 all added up is equal to n, right? Let me apply this property in questions to make you understand what does this mean. All right, don't worry about what is written over here. Let me just explain it to you. For example, you are asked to find the coefficient of a की power 4 b cube c square d in this particular expression. ठीक है, पता कैसे चलता है ये मल्टीनॉमियल का है वो देखो पहले अब, राइट? इसकी हमें कोफिशिएंट निकालना है. जस्ट एड द पावर्स विच आर कमिंग हियर. सो व्हाट आर द पावर्स? एड अप करने पे देखो 1 + 2 + 3 + 4, ये कितनी हो गई? 10, राइट? सो नेट पावर इज 10 विच इज एक्चुअली इक्वल टू द इंडेक्स. तो ये एक पॉसिबल टर्म है इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन के अंदर. नाउ हाउ डू वी राइट मल्टीनॉमियल ऑफ दिस? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. ठीक है, ये c - d raised to power 10 is equal to summation of 10 factorial divided by n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial and n4, जो 4 वेरिएबल है उनके. और ये n1, n2, n3 है क्या? ये सब इनकी पावर्स हैं. ठीक है, जैसे n1 b को आप क्या लोगे? -b. ठीक है, n2, ठीक है, फिर c की पावर क्या हो जाएगी? सिमिलरली n3 और -d की पावर क्या हो जाएगी? एग्जैक्टली n4. पर ये कब वैलिड है? वैलिड कब है? जब n1 + n2 + n3 + n4 क्या हो आपका? 10. तो आपके पास ये मल्टीपल आंसर्स आएंगे. यू कैन हैव डिफरेंट आंसर्स जहां पर n1, n2, n3 और n4 का सम क्या हो? 10. जब ये सारी वैल्यूज अलग अलग डालोगे डिफरेंट आंसर्स के लिए, उन सबको ऐड कर दोगे तब जाके ये एक्सपेंशन बनेगी. ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ लो फॉर दी टाइम भी. हमें निकालना क्या है? a की पावर क्या होनी चाहिए? 4. तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई? आंसर समझ में आ रहा है? सीधा सीधा n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4. n2 की वैल्यू कितनी चाहिए आपको? 3. n3 की वैल्यू कितनी चाहिए आपको? 2. n4 1. दैट्स इट, खत्म. इतना सिंपल है ये क्वेश्चन. सो जस्ट पुट दी वैल्यूज. तो ये क्या बना? 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल. यहां से भी देखो क्या कोफिशिएंट्स आ रहे हैं. ये तो क्या हो गया? a का कोफिशिएंट कुछ नहीं है. b के साथ क्या लिखा हुआ है? माइनस. सो दिस विल बिकम -1 raised to power n2. n2 कितना है? 3. चलो, c के साथ 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है. d के साथ फिर से -1. n4 की वैल्यू क्या है? 1. ठीक है, तो माइनस और माइनस, तो नेट आंसर कैंसिल होके कितना बन गया? जस्ट 10 फैक्टोरियल बाय 1 × 2 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल. So this is the coefficient we were being asked to find in this particular problem. Okay.
और इसी में एक और फॉर्मूला आप कर लो, एक और फॉर्मूला बताता हूँ आपको। तो फॉर्मूला क्या है, इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेंशन, तो फॉर्मूला होता है n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, राइट। इसमें n तो क्या हो गया इंडेक्स, k इज नंबर ऑफ टर्म्स इन दी बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो फॉर एग्जांपल इसमें कितनी टर्म्स हैं, ये बाइनोमियल नहीं है, क्या है, इसमें 4 हैं, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या यूज करोगे, 4, ठीक है, और आप n की वैल्यू क्या यूज करोगे, 10 इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ओके। So if anybody asks you number of terms in this particular problem, then it will become 10 plus 4 minus 1 c4 minus 1. So that means there will be 13 c3 terms in this particular expansion, right? तो आगे से आप कितने भी वेरिएबल वाला मैं आपको एक्सप्रेशन दे दूं, you can tell me the number of terms by using the formula n plus k minus 1 ck minus 1. Got it? Okay, so now let's apply to this two other problem. अब देखो इसमें किसकी पावर निकालनी है आपको, a क्यूब b4 c5, एड दी पावर्स, नेट पावर कितनी है, फिर से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। सो व्हाट इज द नेट पावर हियर, इट इज 12, बट अब की बार नोटिस करो इंडेक्स तो सिर्फ कितना है 6, तो हिसाब से इसकी टर्म तो होनी नहीं चाहिए थी, बट हियर इज अ कैच। कैच क्या है, आप देखो bc प्लस ca प्लस ab रेज टू पावर 6, सो इफ यू सी ईच टर्म हियर हैज two variables, not a single variable. Each term has two variables. So in a way, I can say each term has how much power? Each term has almost power 2. And if I say the index is 6, then the power, net power will become 12. So that means this is a possible term of this particular expansion. तो इसको फिर से अगर हम multinomial के तरीके से लिखते, right? If you just write it in the format of multinomial, so ये ऐसे कुछ हो जाता 6 factorial divided by n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा bc की पावर n1, फिर ca की पावर n2 और ac की पावर n3, राइट। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आपको चाहिए क्या, a की नेट पावर कितनी चाहिए, 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इफ यू हैव दिस, व्हाट इज द नेट पावर ऑफ a। सो नेट पावर ऑफ a हियर इज, a यहां पर भी है और एक यहां पर भी है, कितनी होगी पावर, n2 और n3 को ऐड कर दो तो n2 प्लस n3, राइट। आपको कितना चाहिए, 3। सिमिलरली व्हाट इज द नेट पावर ऑफ b, b इज हियर ऑल्सो, b इज ऑल राइट, दिस शुड नॉट बी c, दिस शुड बी b, माई बैड। सो यहां पर भी b है और यहां पर भी b है, तो ये कितना हो गया n1 प्लस n3, और ये कितना होना चाहिए 4। और सिमिलर लॉजिक से c कहाँ है, n1 और n2 में, तो n1 प्लस n2 शुड बी इक्वल टू 5। Now can you solve these 3 linear equations? Linear equation in 3 variable, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, n1 n2 और n3 की वैल्यू आ जाएगी, उससे आपके पास कोफिशिएंट आ जाएगा, राइट। ओके, सो आई होप दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज क्लियर। Let us take the last problem of the today to finish this particular topic and also understand what do you mean by multinomial as well, right? This now says you need to find coefficient of x raised to power 7 in this particular expansion. अब ये दूसरे सवालों से थोड़ा अलग क्यों है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो वेरिएबल है सेकंड और थर्ड वो खुद में x में ही है, ठीक है। तो देखो उसमें फ़र्क क्या पड़ता है, लेट्स सी। सो मैंने फिर से n1 n2 फैक्टोरियल और n3 फैक्टोरियल तो लिख दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 की पावर n1, 3x की पावर n2 और माइनस 2x क्यूब की पावर n3. So what is the net power of x in the this particular expression? So net power of x कितनी बन गई भाई बताओ, n2 प्लस 3n3 यही बनेगी। और ये आपको कितनी चाहिए एक्चुअल में, ये आपको चाहिए कितनी, यू रिक्वायर दिस टू बी इक्वल टू 7। गॉट इट, ओके। और एक कंडीशन हमारे पास अभी और क्या है कि सम ऑफ ऑल दी पावर्स n1 प्लस n2 प्लस n3 शुड बी इक्वल टू व्हाट, 10। अब जरा अगर इसको सॉल्व करना शुरू करें, हमें पता है n1 और n2 क्या हो सकते हैं आपके इंटीजर्स। सो लेट्स से मैंने टेबल बना दी, ठीक है। n3 की वैल्यू क्या हो सकती थी 0, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, और फिर आप n1 की वैल्यू कितनी कह सकते हो मुझे 3। दिस इज वन ऑफ द आंसर्स दैट वी कैन से। अगला आंसर क्या हो सकता है, n1 को आपने 1 डाला तो n2 कितना बचेगा सिर्फ अब 4, और दिस विल बिकम कितना 5। n3 क्या ले सकता है 2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 6,
यहाँ पर कितना बचेगा 1, दिस इज 1 एंड दिस विल नाउ टेक वैल्यू 7, और कोई ट्रिपलेट आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो दीज आर दी 3 वैल्यूज विच विल सेटिस्फाई दी गिवन कंडीशन. बस अब आपको करना क्या है, उसके हिसाब से उनके कोफिशिएंट्स लिख डालो, दैट विल गिव यू द आंसर. तो पहला देखो, पहला केस लेते हैं ये वाला. तो इसमें क्या हुआ, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 की तो वैसे कोई भी पावर रेस करता रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी ना यहाँ पर. तो पर n1 फैक्टोरियल तो इंपॉर्टेंट था, तो ये हुआ यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल. मैं पता है 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1. ठीक है, 3x. ठीक है, x की पावर क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर n2 की वैल्यू डालो 7. ठीक है, और अब की बार आपको इसकी पावर क्या डालनी है, 0. तो ये तो पूरा क्या बन गया, 0. तो वी कैन लीव दिस. आगे बढ़े, सेकेंड केस. ये कितना होगा, 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और इस बार टर्म क्या बनेगी, 3x की पावर कितनी है, 4, राइट, इनटू दिस इज माइनस 2x क्यूब रेज टू पावर 1, प्लस थर्ड केस 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, राइट. और इसमें अगर पावर्स में देखूं क्या बन रही है, 3x की पावर कितनी है भाई, अब की बार n2 कितना है, 1, एंड माइनस 2x क्यूब की पावर कितनी है, देखो, यस 2. सो दिस इज द पर्टिकुलर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आपसे पूछा था कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो आप क्या करो, नोटिस करो इन सब जगह x की पावर 7 ही बन रहा है. तो आप x हटा दो, ये x हटाओ, ये x हटाओ, ये x हट गया, और ये x हट गया. So these are all the coefficients of x raised to power 7 for this particular question, and this is how you apply multinomial to these kind of problems. Okay, I hope this concept was clear, and by this we'll end this video. We have already taken a lot of time in this particular video, and I guess for revision also you will require complete 2-3 hours to revise this particular video, as I have taken some difficult concepts as well which might be new to many of you. जस्ट री रिवाइज. जो थोड़ा सा कॉम्पोनेंट रह गया है कि भाई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला पेपर में नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट. अदरवाइज वील लेटर ऑन टेक दिस इन द लास्ट फेज ऑफ आवर सीरीज. ठीक है, एक बार पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लें. सो फॉर एग्जांपल सम पीपल वर टेलिंग मी दैट ज्योमेट्री भी करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं जेईई मेंस 2015 और 16 में. डोंट वरी, ज्योमेट्री से भी सॉल्व हुए होंगे, बट वो बिना ज्योमेट्री के भी सॉल्व हो सकते हैं. दैट इज व्हाट आई मेंट टू से. बट वी विल डू ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो. जो आज का थोड़ा सा टॉपिक रह गया वो भी, बट इन द एंड ऑफ द सीरीज, नॉट राइट नाउ, अदरवाइज वील लैग बिहाइंड आवर शेड्यूल. Okay, so I hope you are clear with this particular chapter. Sunday you have a free day. I'll not be uploading any new video on Sunday as part of the syllabus, so that you can revise what has been taught in this entire week. Okay, all right. So what I will do, I might upload a video tomorrow stating how to prepare along with CBSE for your JEE mains, a 10 minutes video, a very short video. All right, so let's see you on Monday again for our next particular topic that will be starting with coordinate geometry. Okay, and I'll be mailing you the sheets, don't worry about them, as per your email IDs. Okay, so, and if you have not filled the feedback form, I request you all to fill the feedback form for day 3, and we'll take a feedback form after today's class as well. So those who have not filled, just fill the form. All right, thank you for your time. See you on Monday. Good night.